میں وہ قرآن کی آپ مجھے حوالہ تو نہیں دے رہے یا حدیث کا حوالہ تو نہیں دے رہے کہ میں اس پہ ٹک جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ اگر وہ نعوذ باللہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ آج جماعت کیوں یہاں پہ ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم؟ جی ڈاکٹر صاحب جی. ہاں دیکھیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کی اپنی تحریریں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 دی ہیں، اور 4 اور بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ 1840 میں بیان کرتے ہیں جی وہ پیدا ہوئے، اور میں نے آپ کو تقریباً 30 حوالے دے سکتا ہوں، 29 حوالے کہ 1838 سے 1842 کے درمیان مرزا غلام مرتضیٰ قادیان میں موجود ہی نہیں تھا۔ اسی بنا پر الیگزینڈر ڈوئی نے بھی انہیں کہا، اور مرزا ناصر نے یہ بیان دیا صفحہ نمبر 1231 پر قومی اسمبلی کی کارروائی میں کہ الیگزینڈر ڈوئی مرزا قادیانی نے لکھا کہ یہ شخص کہتا ہے میں حرام کی اولاد ہوں اور میرا باپ نامعلوم ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ نے تو منہ کی باتیں میں کیوں آپ کی مانوں؟ آپ نے نہ ایک ثبوت دیا، نہ ایک حوالہ دیا۔ آپ جب دوسرے مسائل پر بات کریں گے ان پر بھی ہوگی، لیکن میں پہلی آپ بات کو یہ ہے ایک کہ مرتبہ پھر کہتا ہوں، آپ نے مرزا ایک غلام بات کی قادیانی کا باپ نامعلوم ہے اور وہ ولد الزنا اور ولد الحرام شخص ہے، اسے میں کیوں نبی مانوں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات، آپ نہ مانیں، میں تو آپ کو زبردستی نہیں منا رہا۔ آپ نے کوئی، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے پاس 30 حوالے موجود ہیں، کہاں سے آپ نے حوالے لیے؟ اور دوسری بات یہ کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ اگر وہ بندہ موجود نہیں تو وہ موجود نہیں تو اس کی بیوی اس کے پاس ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے، نونو میاں بھی کہیں ہوں گے۔ آپ نے ساری چیزیں ایک خود ہی سے بنا کے جی میرے پاس 30 حوالے، وہ نعوذ باللہ ان پہ جو آپ گند بول سکتے ہیں بول رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج آپ مخالفت کر رہے ہیں، 150 سال سے دنیا مخالفت کرنے والوں کو کوئی نہیں۔ آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے مخالفت کی آج اس کا نام زندہ ہو، مجھے بتا دیں، آپ کا نام بھی ختم ہو جانا ڈاکٹر صاحب، رہنا نام مرزا غلام احمد کا جن کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کا نام رہا، نام ہے، نام رہے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ہم اب جو مرضی ان کے خلاف بولتے رہے، بولنے والے چلے گئے، وہ قادیان سے کہتے باہر نام نہیں جائے گا، وہ بھی چلے مر کھپ گئے، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ پاکستان میں ضیاء الحق جیسے پیدا ہوئے، وہ مر کھپ گئے، ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے بھی آج ختم، کل آپ کو کسی نے یاد نہیں کرنا۔ مرزا غلام احمد کو لوگ یاد کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ میری آپ سے بالکل اللہ ایک اعلان ہے، یہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا، میں نے آپ کو اتنے پکے حوالے دیے ہیں۔ اب سنیں جی، وہ 1838 سے 1842 تک موجود نہیں تھے۔ خان 2015، یہ جو ہے نا، یہ خان وہ ہیں جنہوں نے ان پر پی ایچ ڈی کی تھی، صفحہ نمبر 22 اور 23 پر انہوں نے یہ بات لکھی۔ سر لپیل گریفن، جس کے حوالے آپ کے نام نہاد خلیفے بھی دیتے ہیں، 1865 کی کتاب ہے، اور اس کے پنجاب چیف اس کا نام ہے، صفحہ نمبر 381 سے 382 تک۔ درد صاحب جو آپ کے امام مسجد تھے، ان کی 2008 کی کتاب، صفحہ نمبر 33 پر غور کریں۔ ایڈمسن 1999، صفحہ نمبر 14۔ خان 2015، صفحہ نمبر 22۔ ایڈمسن 1999، صفحہ نمبر 13۔ ٹھیک، اور اس کے بعد لیوان 1974، صفحہ نمبر 23، صفحہ نمبر 24۔ گریفز 2018، صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 29۔ گریفن اینڈ میسی 1890، صفحہ نمبر 50۔ فرائیڈ مین 2003، صفحہ ڈاکٹر نمبر صاحب 2۔ رکیں آپ نہیں آپ نے حوالے مانگے، آپ ڈاکٹر جو جی ہے نا صاحب منہ سے آپ بات دیکھیں، کرتے آپ ہیں۔ کیا دے اپنا رہے ہیں؟ نہیں اپنا ابو بھائی سن لیں، عطا بھائی سن لیں، پھر آپ 2 منٹ بول لینا. نہیں، دیکھیں میرے بھائی، یہ ایسے بولتے رہیں گے فلاں، میں بھی کتابوں کہتا ہوں فلاں، یہ دیکھیں یہ کو حوالہ دے رہے ہیں گریفن فرسٹ پیج نمبر 14 فلاں، یہ دس از ناٹ دا وے کہ آپ مجھے بتائیں کوئی ہماری جماعت کی کتاب، کوئی مرزا صاحب کی کتاب، کوئی اور چیز دے یا کوئی قرآن حدیث کا حوالہ دے، آپ مجھے دے رہے ہیں گریفن۔ دیکھیں انہوں نے پہلے آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے بھی سنائے ہیں،
मैंने नहीं, खुद सुने हैं। नहीं सर, उन्होंने देखें, उन्होंने मुझे वो साबित क्या कर रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद नाउजुबिल्लाह ना वो ये साबित कर रहे हैं इस हवाले दे दे के। वल्दुल नहीं जना कह साबित रहा नहीं हूँ। कर रहे, वो सबूत सामने रख रहे हैं। आप कौन उनके सा रद्द सबूत में है? कुछ अच्छा सबूत भाई, दें। आप मुझे बता दें, आपने ये जो हवाला दिया, जो भी आपने किताब देखी है ग्रिफिन की? आप ये कह बिल्कुल रहे हो मेरे कि- पास मौजूद है, बिल्कुल। सारी की सारी किताब, सफ़ा नंबर आप बोले 2 मैं अच्छा मिनट पढ़ना उस शुरू दें करता हूँ। अता भाई आपको 2 मिनट देते हैं। जी, जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ग्रिफिन की किताब मेरे पास पूरी मौजूद है। आप सफ़ा नंबर बोले। आदिल हुसैन ख़ान का थीसिस मेरे पास पूरा मौजूद है। सफ़ा नंबर बोले। अल्फ्रेड मॉल मेरे पास आपकी तकरीबन 300 से ज़ायद किताब हैं। मैंने आपके रूहानी ख़ज़ाइन को तकरीबन 10 मरतबा सफ़ा एक पहले से आखिरी सफ़े तक पढ़ा है। मैंने आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताबों के हवाले दिए हैं। ये जो मैंने दूसरी किताबों के हवाले दिए हैं, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के बारे में नहीं, बल्कि उनका नाम नहाद जिसे बाप कहते हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा, उसके बारे में दिए हैं कि वो 1838 से 1842 तक कादियान में मौजूद ही नहीं था। सफ़ा नंबर 1231 कौमी असम्बली की कार्रवाई इसको कंफर्म करती है, और दूसरी बहुत सारी किताबें भी कंफर्म करती हैं। मैं आपसे ये बात आपके सामने रखता हूँ कि आपकी जमात 1835 इसलिए एक नॉन एग्जिस्टेंस एविडेंस की बिना पर देती है, यानी कि जिसका कोई सबूत ही नहीं। 1835 इसलिए कहती है कि 1840 कहने पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी वल्दुल ज़ना और वल्दुल हराम साबित हो जाता है। आप बोलो। सब बात ये है कि आप जो मर्जी, क्योंकि आप पहले इंसान शख्स नहीं हैं जो इस तरह खुदा ताला के जो भेजे हुए नबी और महदी मौद होते हैं उन पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले भी तमाम नबियों पे इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि आपने बेशक 10 दफ़ा किताबें पढ़ी हो, खुदा ताला जब किसी को हदायत देना चाहता है तब देता है। अबू जहल जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के साथ ही था ना, वो भी अबू हकम के नाम से मशहूर था, तो वो भी जहालत में मर गया था। तो ये कोई हरफ आखिर नहीं है। दूसरी बात यह है कि खुदा ताला का कभी भी जो नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के लोग हों जैसे आप साबित करना चाह रहे हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं हुआ करता। मैं आपको 1000 अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको ज़ियाउल हक की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं भुट्टो की ज़िंदगी में भी बातें, अगर आप तो ग्रिफिन की मुझे किताबों के हवाले दे रहे हैं ना, मैं तो आपको अभी हमारी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, भुट्टो है, ज़ियाउल हक है, शाह फैसल है, जितने भी निकात जिन्होंने हज़रत मसीह इस्लाम की जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और फिर पीछे तो उनकी जो लेख राम वगैरह छोड़ दें, वो तो उनका हाल दुनिया ना उनको आसमान ने कबूल किया ना दुनिया ने कबूल किया। आप क्या बात कर रहे हैं? खुदा ताला क्या ऐसा खुदा तो जिंदा खुदा है ना, जो जानता है। अगर खुदा नऊज़ बिल्लाह मिर्जा साहब का अच्छा अता भाई आपका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन बात यह है कि आप इल्जाम का कोई जवाब दें प्लीज। सारे ये इल्जाम जनरल बात ना करें। देखे ऐसे उन्होंने किताबें पढ़ के मैं उन्होंने इल्जाम का जवाब तो किताबें दे रहा हूँ। सफ़े आपकी जमात के सामने रखे हैं, आप सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं, सुनी सुनाई आप कोई। पहली बात तो यह है कि आप मुझे उन्होंने किताबों के हवाले किताबें पढ़ते गए, फलां किताब कोई हवाला नहीं दिया उन्होंने, कोई यहाँ पे मुझे भेज नहीं दिया। वो सर सफ़े पढ़ के सुना रहे हैं। आप बताएं कि ये जो जमात की किताबें हैं, आपके वो जो हवाले में डॉक्टर साहब ने जमात की किताबें पढ़ के दी हैं, उसका आप कोई हवाले से जवाब दें कि ये सबूत है, इस इल्जाम का ये रद्द है। मैं सर दे तो रहा हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ। वो तो जो मर्जी कहते नहीं, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं उनको, वो खुद कल पैदा हो रहे हैं। इल्जाम का रद्द करें, आप इल्जाम का रद्द करें। 2 मिनट बोलें। रद्द तो मैं कर रहा हूँ कि खुदा ताला के जो निशान है वो हमारी आंखों के सामने, उनको देखें। क्या जो भुट्टो ने हमें काफिर करार दिया था, भुट्टो के साथ आपके साथ क्या हुआ? उसके मरने के बाद उसकी मैयत के साथ क्या हुआ? ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। क्या खुदा ताला ऐसे एक इंसान जब नेकी का काम करता है, 90 साल उसने मसला हल कर दिया, उसने हमें काफिर करार दे दिया असम्बली में और कहा जी मैं 90 साल का, उस पर खुदा ताला इतना नेक काम किया, तो क्या खुदा ताला का उसके साथ सलूक ऐसा होना चाहिए था कि उसकी मैयत को बाद में नंगा करके देखा जाए, तस्वीरें खींची जाए? मुझे बता देना, मेरा टाइम शुरू हो। अता भाई ये सवाल का जवाब नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को 2 मिनट देता हूँ। ये सवाल का जवाब नहीं है वैसे। अच्छा भाई, सारे सुनने वाले जिसने भी सुना, जी डॉक्टर साहब बात कर लें।
हाँ, डॉक्टर किताबों के हवाले मेरी से- अता बारी भाई है, आप मेरी सुन लें, बारी। आपको 2 मिनट वो देते सवाल नहीं हैं। है। अता भाई डॉक्टर साहब को 2 मिनट दें, ठीक है, तो हाँ, आप मेरी फिर बारी अपनी है, बारी पे मेरी जवाब बारी। दे लेना। हाँ, देखें मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने हवाले दिए इन्हें, मुस्तनिद हवाले, ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 177, किताबुल बरिया, मिर्ज़ा कादियानी निकाह 1839-40 में पैदा हुआ, 1857 में 16 या 17 बरस में लगा था। ये नहीं कि 16 बरस का था, उन्होंने लिखा 16 बरस का या 17वें बरस में लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा वालिद की वफ़ात के वक्त 34-35 बरस का था। उनके वालिद की कब्र पर लिखा हुआ है तारीख़ वफ़ात जो है जून 1876 लिखी है, 1840-41 बनती है। अदालत में खुदा की कसम उठाकर कहा 1901 में 60 साल का हूँ, 1841 बनती है। फिर ख़ज़ाइन की जिल्द 15 में सफ़ा नंबर 486 पर लिखा और 485 के आखिर में, और जनाने वाली दाई से की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। इतने सारे हवाले हैं। आपकी जमात सिर्फ़ इसलिए 1840 जो उसने बार बार अपनी तारीख़ पैदाइश लिखी है नहीं मानती, क्योंकि अगर मान जाए तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम नहाद बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा 1838-1842 के दरमियान कादियान में मौजूद ही नहीं था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वल्दुल हराम और वल्दुल ज़ना साबित हो जाता है। आप कोई हवाला लाएं मुस्तनिद, ताकि मैं अपना बदल लूँगा। अगर आप इसको आप 100 साल भी ज़िंदा रहें तो इस एविडेंस को आप गलत नहीं कह सकते। जी अता भाई ये हवाले हैं, आप डॉक्टर साहब, इन मैंने हवालों का रद्द करें। मैंने आपसे ये आप जो पहले कह रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा अपनी सारे वाले दिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1835 1839 इंसान आगे पीछे कुछ भी बता सकता है। मेरी वालदा, मैं अपनी वालदा मिसाल दे रहा हूँ, पुराने लोगों को दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने इन चीज़ों से ये नौजुबिल्ला जुनून कर लिया और ये किसी के ऊपर इतना गंदा घटिया इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उसका वालिद नहीं है। खुदा का खौफ करें, खुदा को जान देनी है। जब वो बात गलत है, जब आप अपनी आंखों से देख ना लें और खाना सुनना, आपने जो जान की अपने से महफूज़े कायम करके और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सिर्फ उस दिन से डरता हूँ जब आपकी पकड़ होनी है और खुदा ताला ने आपको नहीं छोड़ना। मुझे बेशक जो मर्जी कहें, लेकिन एटलीस्ट वो बात कहें जो आपने अपनी आंखों से देखी है या अपने कानों से सुनी है। फिर दूसरी बात यह है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलें, क्या आप ये कह रहे हैं, तो क्या खुदा तो जिंदा बैठा, क्या खुदा एक जो नौजुबिल्ला जो हराम का हो, उसका बाप ना हो, उसके साथ ये सलूक करता है? खुदा तो जिंदा मौजूद है ना, ये इससे बड़ा वाला क्या है? मुझे खुदा ही वाले से दे दें कि खुदा ने उसके साथ ये कहते, इसलिए खुदा ने उसके जमात के साथ ये सलूक कर दिया, उसके साथ सारा। और खुदा तो हर रोज एक नया सूरज चढ़ा रहा है, हर रोज एक नया आसमान दिखा रहा है हमें। आप पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, कहाँ किस दुनिया में बस रहे हैं। 40-50 बंदों को आप कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप खुदा के वास्ता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, देखें, गंदे इल्जाम ना लगाएं किसी के ऊपर। जी अता भाई देखें, अता भाई देखें दिए हैं, हाँ, उन्होंने किताबों एक के दफ़ा हवाले दिए, आपने एक दफा भी कोई हवाला नहीं दिया सिवाय जनरल सी बात की। हाँ, एक डॉक्टर साहब मिनट। इसका मतलब है ये मिर्जा सर्टिफाइड हरामी था। हाँ हाँ बिल्कुल सर्टिफाइड जी, शक ही कोई नहीं है। अब तो मेरे 2 मिनट शुरू करें प्लीज। अच्छा मैं एक छोटी सी लाइन मैंने आपके आपको- सामने मैंने रखूं। आपको पहले कहा था- अता भाई एक मिनट, अता जी। भाई एक मिनट। हाँ जी। मिर्जा साहब फरमाते हैं, वो भी हम आपको हवाला देते हैं कि अल्लाह पाक मुझे एक लम्हे के लिए, आंख झपकने के लिए भी गलती पे नहीं रखता। 4 दफा मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, तो आपके ख्याल में एक जगह वो लिखते हैं कि मैं एक आंख झपकने के लिए भी मैं गलती पे नहीं रहता, तो आपके ख्याल में मिर्जा साहब ने गलत लिखा है? आपने मुझे ये दिखाना है कि मिर्जा साहब ने जहाँ भी लिखा है वहाँ लिखा, मैंने खुदा से खबर पा के लिखी है, ये बता दे मुझे, दिखा दे। जहाँ खबर खुदा का वो लफज ना इस्तेमाल करें, वो वाला लफज आप गलत मानते हैं जमात? नहीं, देखें एक बात, देखें, आप मुझे बताएं, मिर्जा साहब की बात हो रही है, मेरी आम बंदे की नहीं है। आप उसको नबी मैं मानते उसी की हैं, बात- जहाँ देखें, मिर्जा साहब ने कसम अच्छा, नहीं एक मिनट, खाई आपके एक नजदीक वो मिनट। गलत है? सारे एक मिनट देखें, नबी जो होते हैं खुदा के, वो वही बात कर, जो जब खुदा से वो कोई बात खुदाई बात करते हैं तो वो बताते हैं खुदा ने मुझे ये बताया और ये बात है, उस पे आपको इल्जाम लगाएं कि खुदा ने मुझे बताया है। अगर आप कहें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो साहब मेरे 2 मिनट शुरू करें जी।
देखिए आप वो बात अच्छा कर रहे हैं। अता जी भाई आप 2 मिनट और बोल लें, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि मैंने आपको मना नहीं नहीं किया। मेरे आप भाई, पहली बोल लें, मैंने फिर मैं मैंने डॉक्टर साहब को आपसे टाइम देता हूँ। मैंने पहली बात तो ये आते ये बात की थी कि मैं काम पे हूँ ना, मेरे पास इससे किताबें मौजूद हैं, मेरे पास घर पूरी रूहानी खजान 85 किताबें मेरे सामने मेरी लगी हैं, जो कि मैं उसे निकाल लूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये रह गई कि मैंने हरगिज ये नहीं कहा, मैंने आते इनको ये कहा था कि ये आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं कि 1918 से, मैं पहले दिन से कहा कि कोई मिर्जा साहब ने कहीं ये नहीं लिखा कि खुदा ताला ने मुझे कहा है कि मैं 1835 में 1839 से पैदा हुआ हूँ। हाँ, मिर्जा साहब ने जो इल्हामात अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के या खुदा को शामिल करके लिखी हैं, जो लिखी हैं, उस पर आप ज़रूर बात करें, उसकी बात करें कि वो गलत हैं या वो झूठे हैं, तो फिर बात वो आज पूरी नहीं हो रही। लेकिन आपने उनकी लाइफ पे ये उनका 1835 से 1841 ये और इस वैसे भी 3 बज गए हैं, 3 बज के 4 मिनट हो गए हैं, तो आप थोड़ी सी मुझसे बात करें। मैं रोजाना आता रहूँगा, मैं कल भी आ जाऊँगा, फिक्र न करें इंशाल्लाह ताला। हाँ तो जी सर डॉक्टर मेरा साहब की टाइम। डॉक्टर साहब की 2 मिनट सुन लें, और अगर आप बिजी हैं तो फिर आप चले जाएं, कोई हाँ बात नहीं, नहीं। एक मिनट जी डॉक्टर साहब। यार, आप तो मुझे मौका नहीं देते, बाकी सबको देते हैं। देखें, बात ये है कि मैंने आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीर, अब वो आपकी जमात में लोगों को इल्हाम होता होगा कि वो कब पैदा हुए, हम लोगों को नहीं होता। हमारे पास अंबिया की डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। आपकी किताबों में ये लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा 1791 में पैदा हुआ, और आपकी जमात इसको डिनाई नहीं करती, वो जिसे आप बाप कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम का कोई खुदा इल्हाम नहीं करता, हर कोई खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बार बार एक ही डेट ऑफ बर्थ लिखी, 1840 या 41, वो इधर उधर नहीं होता मिर्ज़ा कादियानी। तो आप लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सबूत, मैंने आपको किताबों के सबूत दिए। ग़ुलाम मुर्तज़ा 1838 से 1842 तक कादियान में नहीं था, इसलिए आप 1840 से दूर भागते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बग़ैर किसी शक व शुबे के वल्दुल हराम और वल्दुल जना था, और ग़ुलाम मुर्तज़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है उनका वालिद हरगिज़ नहीं था। आपने इतनी बातें की, आपने मुझे एक भी सबूत नहीं दिया जो ये कहे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरें गलत हैं। अगर गलत हैं तो वो उस तरह से भी झूठा हो जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मौलाना शाह अहमद नूरानी ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पे पखाना और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, और खुदा गवाह है कि उनकी अखबार में खबर छपी थी वो जब लैटरी में गिर के मरा था नूरानी, ठीक है। अच्छा, मिर्जा साहब पे जिसने इल्जाम लगाए वो मर गया, बात मान ली। अब आप अच्छा बताएं कि अब इसका हवाले का कोई जवाब अच्छा, दें, बाकी नहीं छोड़ें। ये मेरी बात सुने, ये जो डॉक्टर साहब हमने किसी आपकी बात 15 दफा सुनी है जो रिलेटेड नहीं है। अच्छा, सारी तो दुनिया मर गई जिसने मिर्जे की मुखालफत की। अब आप ये बताएं, इन हवालों का जवाब दें बस। हवालों, भाई हवाले तो मैं इनको, ये हवाले जो कह रहे डेट ऑफ बर्थ का कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या मिर्जा साहब ने अपना खुदा को गवाह ठहरा के ये साबित किया है। और दूसरी बात ये रह गई कि मिर्जा साहब जहाँ गवाह नहीं उठाते वो उन जमात के नजदीक झूठ है। झूठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात ये फिर है झूठ नहीं है तो फिर 40 माने। यार, आप 40 मान लें, 39 मान लें, 35 मान लें, इसमें हर्ज क्या है? हर चीज ये है कि वो वल्दुल जना साबित हो रही है, ये भी कैसे? मसला बन रहा है ना अब। अच्छा, वो भी हवाला सामने है। अच्छा मेरे भाई, फिर आप ये है कि ये आपने वल्दु जना नऊजुबिल्लाह ये आपसे गढ़ा है या आपने साबित कर लिया, खुद ही बना लिया? नहीं, किताबें पढ़ के सुनाई है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, मिर्जा साहब ने आप खुद बता रहे हैं मैं 1839 से हूँ, कभी 1841 से है, ये रक्षा वाले दे रहे हैं, तो उससे ये उससे साबित नहीं हो रहा, फिर आप उसको बना लेंगे मिर्जा साहब नऊजुबिल्लाह बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। नहीं, उन हवालों की बुनियाद पे और उनके बाप अच्छा, की फौज में मौजूदगी से ये साबित है कि वल्दुल जना है। ये वल्दु जना से आपने कहाँ से ले लिया? डॉक्टर साहब ने सबूत रखे हैं, एक सबूत रखे हैं, वो कुरान का वाला हाँ दिया जी। डॉक्टर साहब ने या कोई हदीस का वाला दे दिया? मिर्जा साहब की तहरीर नहीं, पेश किया। मिर्जा साहब की तहरीर पेश करें। तहरीर का देखिए, उन्होंने मिर्जा साहब की जो अल्फाज हैं वो बयान करें जी। उन्होंने या 1839 या 1841 या 1835
इस तरह के डेटे बता रहे हैं, लेकिन क्या इससे मैंने तो कहाँ से 35 कहा ही नहीं, मैंने तो 40 या 41 आप कहा बताएं, है। आपने ये वल्दुजना का अपने पल्ले से जी वो मिर्जा साहब ना के ना वाले ना, मौजूद सबूत नहीं था। दिए हैं मैंने आपको। नहीं डॉक्टर साहब ने कोई सबूत नहीं दिया कि उनके वाला मौजूद नहीं था। दोबारा सुने मैं अब दोबारा देखता हूँ। अगर आपका वालिद जी मौजूद है, आपकी जी वालिदा नहीं जा सकती? डॉक्टर साहब, नहीं वो डॉक्टर साहब सबूत देते हैं, आप सुने जी। नहीं, दोबारा डॉक्टर सुने सबूत डॉक्टर ले साहब- जी, डॉक्टर साहब सबूत ने- सुने। कहाँ लिखा हुआ है कि मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा 1832 और 38 और 42 के दरमियान नहीं था? एडमसन EN 1989, मिर्जा गुलाम अहमद अफकादियान, ये किताब है, एलीट इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। दर्द आपका अपना आदमी, AR दर्द, अब्दुर्रहमान दर्द, जो लंदन मॉस्क का था। 2008, लाइफ ऑफ अहमद, फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट, PDF, ठीक। फ्राइडमैन योहानन 2003 की किताब है, इसमें भी लिखा हुआ है। ग्रिफन, लपेल, मैसी, चार्ल्स, और ग्रिफन ने तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो सुल्तान अहमद था वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बेटा नहीं था, वो असल में गुलाम कादर का बेटा था। तो अच्छा, क्या डॉक्टर- ख्याल है? डॉक्टर साहब आप बताएं, जो मोहम्मद साहब बटालवी था उसको मानते हैं आप? जी, 2 मिनट मेरा आपको मानने देते का हैं, क्या, वो 2 अपने मिनट, 2 ज़माने मिनट का देते एक शख्स था, मुझे उसके बारे में कोई इतराज़ नहीं है। नहीं, उसने क्या बयान दिया था कि अगर उसने जब मेरे सामने दावा नहीं किया तो उससे पहले उसकी जिंदगी के बारे में क्या कहा था उसने? आप कैसे कादियानी हैं? आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की अपनी तहरीर को नहीं मान रहे? मैं उनकी तहरीर को तो मान, लेकिन आप उन पे जो गंदा घटिया इल्जाम लगा रहे नहीं, वो तो हैं- साबित होता है, मैं नहीं लगा रहा। अलेक्जेंडर डोई ने सबसे आप तो पहले डॉक्टर- लगाया आप था। तो डॉक्टर ये भी मिर्जा साबित करते हैं नासिर कि- ने कंफर्म किया था डॉक्टर साहब, आप कौमी ये भी असम्बली कहते के हैं- दरमियान। आप ये भी- सफ़ा नंबर 1231 पर लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि वो मुझे कहता है कि मैं हराम की औलाद हूँ और मेरा बाप अच्छा नामालूम। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपने जो इल्जाम गंदा लगाया इसका नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। डॉक्टर साहब, आप भी इधर ही हैं, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द इसका जवाब दे देगा, फिक्र न करें, आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? अल्लाह ताला जवाब दे देगा, अल्लाह ताला जवाब दे देगा। डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, ताला उससे किताबें बदल जाएंगी। डॉक्टर साहब मौजूद फौत हो रहिएगा यहाँ जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब फौत हो जाएंगे, फिर ये हवालों का जवाब आ जाएगा। और भाई मेरे हवाले जो उन्होंने दे रहे हैं, कहाँ वो तो वल्दुल हराम का कहाँ से उन्होंने निकाला है? ये आप हाँ आप लोग- बल्दुल आप लोग हराम तो आपकी सारे किताब बैठे से हैं। साबित कर, आपकी किताब से साबित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं गलत साबित कर, कहाँ साबित किया उन्होंने मेरी किताब से? कौन सी किताब साबित की उन्होंने? हाँ, मैंने दोबारा सुन लिया यार। वो ये ग्रिफन मेरी किताब है, ग्रिफन मेरी किताब है। नहीं बताओ नहीं नहीं, मुझे। मिर्जे की आप किताब उसका थी, मिर्जा साहब। आप उसका नहीं, रद्द दें जितनी ना। बुक्स का जो दर्द और गिरफ्तार और सारी बुक्स क्या हमारी हाँ। मेरे साहब किताब है? देखें, आप चौधरी साहब दोबारा जरा सुन। मेरा वक्त शुरू करें थोड़ा सा। हाँ जी, 2 मिनट डॉक्टर साहब को देते हैं, 2 नहीं, मिनट वो दे अता दें, भाई को। लेकिन मेरी बात सुनिए, उन्होंने डॉक्टर साहब को ग्रिफन का कुछ एंड्रयू का कुछ साल का उनका हवाले दे रहे हैं, वो क्या जमात अहमदिया के वो कोई मिर्जा साहब के अपनी बुक्स का हवाला है? हाँ जी, वो मिर्जा साहब की भी 4 किताबें चौधरी हवाले साहब पर- जरा मेरा किताबों में तो मैंने टाइम कह दिया, शुरू लेकिन वहाँ से करें। वल्दुल हराम का साबित हो रहा है भाई, ये बता दो मुझे। हाँ जी, डॉक्टर अगर साहब की आपकी सुने वो डेट- बताते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे है तो उससे मैं आप साबित कर आप खुदा आपने बाप की औलाद ही नहीं है। ये मुझे किसने इख्तियार दे दिया ये? जी डॉक्टर साहब की बात सुने, आप उनका दलील से जवाब दे दें। नहीं, मैं दलील से, अब इससे दलील और मैं दलील क्या मैं कोई ला के उनको क्या मैं दे दूं? बता तो रहा हूँ कि अगर मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ पे कोई शक है, मान ले 41, 38, 35 2 कर लें, लेकिन मैं ये मुझे किसने हक दे दिया कि मैं कहूँ तुम तुम्हारा बाप ही नहीं है? नौजुबिल्ला। वो सबूत दे रहे हैं ना कि बाप नहीं था। ओ भाई, चौधरी साहब, तो- आप टाइम अच्छा, वो शुरू माना नहीं नहीं। करते, अच्छा, आप- मेरी बात सुनिए, एक बंदा वो पता नहीं कहाँ से गया, जो घर पे नहीं था, तो क्या उसकी बीवी उसके पास नहीं थी? कहाँ से इल्जाम कहाँ से लगाया? आप उसके जवाब में हवाला देना। चौधरी साहब, आप मेरा बात टाइम, सुने। आप सबसे ज्यादा मेरे से अच्छा, नाइंसाफी दो कर मिनट रहे का हैं। बात कर लें, 2 बात कर लें, फिर मुझे इजाजत दें, फिर मैं खाली आपको बाकी तो सवा 3 हो हाँ जाएगा। जी, 2 मिनट डॉक्टर साहब सुनते हैं। जी डॉक्टर हाँ साहब। जी। हाँ जी, आप मुझे जवाब नहीं देने देते। देखें, उनकी तारीख़ पैदाइश उन्होंने 1840 या 41 लिखी है, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ। आपने खुद पूछा था कि मैंने ग्रिफन की किताब पढ़ी है, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ी है, और दूसरे लोगों ने भी लिखा है मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा के बारे में। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें उसमें से कहाँ से आ गई? ग़ुलाम कादियानी तो पैदा भी नहीं हुआ था जब वो सिखों की फ़ौज में मुलाजिम था। 1818 से 1849 तक ग़ुलाम मुर्तज़ा,
اور جب 1840 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کی کتابیں نہیں ہوں گی، اسی لیے دوسروں کی کتابوں کے آپ کو بے شمار حوالے دیے کہ 1838 سے 1842 تک مرزا غلام مرتضیٰ فرسٹ اینگلو افغان وار جو سکھوں کی جنگ تھی اس کے لیے افغانستان گیا ہوا تھا۔ اب جب وہ تھا ہی نہیں قادیان میں تو وہ کیسے ہو گیا اس بچے کا باپ جو 1840 اور 41 میں پیدا ہوا؟ وہ تو 2 سال پہلے چلے گیا تھا۔ اب اس کا کوئی اور باپ ہے؟ میں تو کچھ لوگوں نے شارٹ لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے پاسبل باپوں کی اس کے، لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ غلام مرتضیٰ اس کا باپ نہیں تھا، اور یہی بات الیگزینڈر ڈوئی نے کہی اور بہت سارے لوگوں نے کہی اور مرزا ناصر نے دہرائی اسمبلی کی کارروائی کے دوران۔ ڈاکٹر تو صاحب بس ابھی تو دیکھ میرے 2 منٹ نہیں ختم ہوئے، نہیں میرے 2 منٹ نہیں، نہیں ابھی ختم 20 سیکنڈ رہتی ہیں، 20 سیکنڈ۔ ہاں 2 منٹ نہیں ختم ہوئے۔ آپ بات اب میرے باقی ٹائم آدھا منٹ ابھی پھر شروع کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے حوالے ایک بات ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ولد الزنا اور ولد الحرام تھا، یعنی اس کا باپ وہ نہیں تھا جس نے چراغ بی بی سے شادی کی، کنفرم۔ دوسری بات کہ آپ جو ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں تو وہ ٹاپک جب آئے گا اس پر بھی ہم آپ کو ایسے ہی مستند حوالے دیں گے، اور آپ کی تسلی کے لیے مرزا غلام قادیانی کی جب وفات ہوئی تو وہ انتہائی عبرتناک منظر تھا، اور آپ نے خود سیرات المہدی کے صفحہ 10-11 پر لکھا ہے کہ دست پر دست آ رہے تھے اور آخری 2 دست اسی چارپائی پر آئے اور پورے جسم پر ملے گئے۔ ہم نے تو لکھا ہی نہیں۔ آپ اپنی کتابوں کی لکھائی کو جب آپ اس موضوع پر آئیں گے میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ انتہائی عبرتناک موت تھی، اور مرزا طاہر کو آپ نے زہر دے کے مارا۔ مرزا محمود جو تھا 8 سال اپنا پخانہ لے کر کھاتا تھا اور منہ اور جسم پر ملتا تھا۔ 27 سیکنڈ کافی ختم ہو گئے ہیں، اب تو چل رہا آگے۔ بات یہ ہے جی ڈاکٹر اپنا عطا بھائی آپ کو 2.5 منٹ دیتے ہیں، 2 منٹ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، آپ کیسے ثابت کریں کہ آپ اپنی اسی باپ کے اولاد ہیں؟ آپ کو اپنی ماں نے بتایا نا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ بات یہ ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جس لوگوں کے پاس سچائی ثابت کرنے، کوئی جھوٹ ثابت کرنے کچھ نہیں ہوتا نا، وہ اس طرح کے ذاتیات پہ آتے ہیں، ذاتیات پہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، وہ ایسا ہے، اس کو فلاں، اس کی ماں بری تھی، اس کا باپ برا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جو ثابت کرنا وہ کر دیا دنیا میں۔ ہم ساری دنیا ہم بیٹھے ہیں، آپ نہیں جھوٹا ثابت کر سکتے۔ آپ ڈاکٹر عبدالسلام نہیں پیدا کر سکتے، آپ ظفراللہ خان نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ تو بس آپ نے مرزا صاحب پہ صرف کیونکہ الزام ہی لگانے ہیں، نعوذ باللہ ان پہ حرام اور فلانا اور تمکانا ہے کہنا، تو آپ کہتے رہیں، اس باتوں کو کوئی فرق نہیں مجھے پڑھنے والا۔ اور دوسری بات یہ رہے گی کہ آپ میں نہیں یہ ریکویسٹ آپ سے کر رہا تھا کہ آپ ذاتیات پہ نہ جائیں، آپ موٹی موٹی ذرا بڑی بڑی باتوں پہ آئیں، میکرو لیول پہ آئیں۔ آپ مائکرو لیول پہ جا کے تو آپ اپنے آپ کو غلط کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس، آپ کسی کو ثابت کیا کرنا ہے آپ نے اپنی طرح، آپ دور کریں گے اپنے آپ سے۔ آپ کے پاس کون آئے گا اگر آپ اس طرح کی گندے الزام لگائیں گے لوگوں کے اوپر کہ میں نے پتہ کر لیا جی کہ وہ ان چیزوں سے میں نے ثابت کر لیا کہ وہ نعوذ باللہ والد کے بغیر پیدا ہوا، والد کے بغیر پیدا ہوا، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، بس میں نے ثابت کر لیا کیونکہ وہ تھے نہیں۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ لیں جی اب میرے 2 منٹ۔ اچھا جی بات یہ ہے چودھری صاحب آپ انٹرپشن کرتے ہیں تو بات غلط ہو جاتی ہے۔ اوکے جی اوکے، 2 منٹ آپ کریں بس۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو حوالوں سے ثابت کیا کہ آپ لوگ 1835 اس لیے کہتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی دور دور تک نہیں لکھی، آپ نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا۔ اور میں یہ نہیں کہتا بغیر باپ کے پیدا ہوا، میں نے کہا کہ اس مرزا غلام قادیانی جو تھے ان کا باپ کوئی اور تھا، غلام مرتضیٰ نہیں تھا۔ زنا کی اولاد ہے مرزا غلام قادیانی۔ اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے، میں نے آپ کو بے شمار حوالے دیے ہیں ان باتوں کے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی بات کہی ہے۔ اور اگر آپ جو دوسری باتیں کرتے ہیں نا، تو جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے تو ایک ایک کر کے بات کریں۔ میں تو آپ کو ایسے ایسے حوالے دوں گا مرزا قادیانی کی زندگی میں کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ شخص تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔
नबूवत तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब आप पहली बात तो ये है कि मैंने आप जिंदगी पे मैं करूंगा ये मैं करूँ, आप पहले बताएं उनके दावे झूठे साबित कर दें। मैं तो तबलीग ज़मीन आप उस पे आएंगे तो उस पे बात कर लेंगे, अभी मेरा टाइम नहीं है, 3:15 3:30 हो गया। आपको पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, आपका मुझे टाइम का पता कि आपका टाइम से क्या चल रहा है। मैं भी इंग्लैंड में रहता हूँ। हाँ जी, मेरे तो सर से 3:18 हो गया है। हाँ 21 मिनट, हाँ बस यही टाइम है, तो 3:15 के बाद। मैं आपसे ये कहूंगा कि खुदारा आप गंदे जो घटिया हैं उनको छोड़ें, इन पे ना आया करें। आप इससे आपकी शख्सियत पे असर पड़ेगा, आपकी शख्सियत बुरी लगेगी। ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो आपको सबूत दिया, आप इसको सबूत के साथ रद्द कर दें, मैं मान लूंगा। आप तो कुरान से कहते हैं, कुरान ने मुझे ये हक दिया कि मैं उनको ये गंदी गंदी गालियां निकालूं, तो ये खुदा ने आपको दिया होगा, हमें किसी को नहीं दिया होगा। मैंने तो नहीं कहा ये बात। नहीं आपने कहा तो मुझे हक दिया कि मैं मिर्जा को ये सारी कुरान ने मुझे दिया कि मैं इसको इनको बुरा कहूँ। नहीं मैंने तो ये बात नहीं कही, लेकिन कुरान के मुताबिक भी वो झूठा साबित होता है। चले डॉक्टर साहब वो अच्छा जी, अभी मुझे लगता है कि ये वाली जो सेशन है खत्म नहीं होने वाला। हाँ जी खत्म हो गया ना, बस साबित हो गई बात कि इनके पास कोई आखिरी हरफ ये है कि आप प्लीज दोबारा आए। नहीं एक मिनट, दोबारा आए तो साथ में हवाला जात लाएं। मैंने तो आपको बेशुमार रेफरेंस दिए, आपकी किताबों से दिए और फिर दूसरे मुस्तनिद दिए, जिनसे ये साबित होता है कि आप एक जाली डेट ऑफ बर्थ सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि एक ऐसे शख्स को कि जो ज़िना की औलाद है उसको इससे ये जो हकीकत है उसको छुपा सके, वरना कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी गुस्से से नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब आपके ईमान की कोई बात नहीं है आप, क्योंकि बात यह है कि मैं जानता हूँ, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ें देखी हैं और पढ़ी भी हैं और देखी भी हैं कि जो भी मुखालफीन थे उनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा साहब का नाम आज भी मौजूद है, उनकी मानने वाले आज भी तरक्की दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। अभी तो कल एक हमारा ऑस्ट्रेलिया में बंदा शहीद हुआ, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, किस दुनिया में फिर रहे हैं। तो आप मुखालफत करते रहना है, आपने करते रहना है, करते चले गए। तो आप इस तरह के गंदे घटिया इल्ज़ाम लगाने छोड़ दें। ये मैंने उसका हवाला ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। डॉक्टर साहब हकीकत नहीं है, अगर हकीकत होती तो आज पूरी दुनिया में जमात अहमदिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग। नहीं एक मौजू पर रहें, जब आप नंबर की बात करेंगे मैं उस पर बात करूंगा। आप मौजू ही गलत चुनेंगे जब आप ना मैं तारीख पैदाइश कहाँ से गलत मौजू हो गया? आप देखिए तारीख पैदाइश को आप लेके जा रहे हैं उनके नाउज़ुबिल्लाह, उनको कह रहे हैं कि वो बाप के बिल पैदा हो गए। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो साबित हो रहा। नहीं साबित आपने कहाँ से कर दिया, अपने पल्ले से, उनके अपने हवाला जात से। कोई हवाले साबित नहीं होता, कोई हवाला। मैं कहता हूँ कि मिर्जा कादियानी ने बार बार लिखा 1840, आप हैं लोग 1835 कहते हैं क्योंकि वो हरामी साबित ना हो। लेकिन कभी आप कह रहे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1835 1840 तारीख कह रहे हैं, तो इस साबित मैंने ये साबित कर लिया कि वो बीर बाप के पैदा हो। ये कहाँ से आपने लिया? मैंने ये भी तो साबित किया कि 1838 से 1842 तक गुलाम मुर्तजा कादियान में था ही नहीं। दरअसल ये आप वहाँ मौजूद थे उस कादियान में, क्या आपने वेरीफाई किया? लोग मौजूद थे, उन्होंने लिखा रखा है। लोग तो नबियों पे इल्जाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम नहीं ये ऐसे इल्जाम कोई नहीं लगाता जो आप कह रहे हैं। भाई जी आप मुझे बताएं सबूत लाएं ना, आपने तो एक भी रेफरेंस नहीं दिया। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना ये इधर उधर की बातें नहीं, सबूत लाएं। मैं सबूत कह रहा हूँ, मरियम अलैहिस्सलाम पे इल्जाम नहीं लगाया। ना सबूत लाएं। आपके पास एक सबूत नहीं है इसके खिलाफ जो बात मैंने कही। चले ठीक है, मैं बहुत देर हो गई है, फिर इंशाल्लाह। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका, बुरा ना मानना मेरी बातों का, हकीकत है। नहीं डॉक्टर साहब मैं बुरा नहीं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस तरह की आप बातें करके ना वो मतलब आपने कोई एविडेंस नहीं। अताब भाई एक क्वेश्चन है, अताब भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी ये जो किताबें पढ़ के सुनाई हैं डॉक्टर साहब ने अपना जमात अहमदिया, क्या आपके ख्याल में डॉक्टर साहब पे अब अजाब आ जाने? मेरे भाई मेरी बात सुनो, अजाब नहीं, बात ये है नहीं आप वार्निंग दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आप इधर है मैं भी इधर हूँ। हाँ जी मैं बताता हूँ मेरे भाई, मैं आपको नहीं मैं कहता हूँ कि आप जो बंदा झूठे इल्जाम लगाता है ना, झूठे इल्जाम लगाता है, जो जानबूझ के उनकी जात किताबें पढ़ के सुना रहे हैं कोई नहीं देखे किताबें जो पढ़ेगा उस पे अजाब आएगा। भाई आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं
वो कह रहे हैं जी मिर्जा साहब की डेट ऑफ बर्थ कहीं 1841 है तो कहीं 1839 है तो कहीं आप उन्होंने 1835 उसको छोड़ें, आप घंटा हो गया। वो मुख से आप बताएं कि जो उन्होंने पढ़ के सुनाया, आपके ख्याल में इन पे अजाब आना है कि नहीं आना? अब तो आपकी भाई क्या राय है? जो उन पे खुदा ताला जो उन्होंने उन पे उनके उनके इल्जाम लगाया ना कि वो बगैर वालिद की पैदा हो, खुदा ताला इनको इनका खुदा जवाब दे, कोई इंसान ही देगा, कोई नहीं, खुदा देगा जवाब इनको। वो किताब पढ़ के सुनाइए, आपके ख्याल में अजाब आएगा? ओ भाई कौन सी किताब पढ़ के सुनाई है, पहले आप बता दें। आपने मुझे लगता है आप भी किताब नहीं पढ़ी, वो क्या पढ़ी उन्होंने? सफ़े पढ़ के सुना रहे थे। नहीं, सफे में लिखा कि वो बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। वो सबूत दे रहे हैं वालिद साहब उधर नहीं थे, तो मिर्जा साहब कहाँ पीछे से ही कहाँ कहाँ पैदा हो कहाँ गए। नहीं, कौन सी मिर्जा साहब किताब में लिखा कि वालिद साहब मौजूद थे, कौन सी बताई उन्होंने? उन्होंने मुख से उनकी सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये अच्छा आप है अगर लुब्बे कि आपने निकाले मेरी मुझे बात बता सुन दें। लें, उनकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब मेरी सुन लें कि उनका लुबे लुबाब ये है कि मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि मैं फलां साल पैदा हुआ और हाँ जमा और उन सालों में उनके वालिद साहब उधर नहीं थे। उन्होंने सारे सबूत दिए हैं। अगर वालिद साहब नहीं थे तो मिर्जा साहब की पैदाइश जो है जमात इसलिए छुपा रही है कि नहीं नहीं नहीं, मिर्जा जो है देखिए अबू। देखिए मेरी बात हाँ सुनिए, जी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये कि मिर्जा साहब ने लिखा कि मैं 1835 39 में पैदा हूँ लेकिन मेरे वालिद साहब मौजूद नहीं थे, लिखा है वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, उनका लुबे लबाब ये है कि मिर्जा साहब ने जो तारीख दाश लिखी है उन तारीखों में उनके वालिद उधर नहीं थे। जमात अब 1835 इसलिए बताती है कि मिर्जा वल्दुल जना साबित हो रहा है, उसको छुपाएं। उनका ये है लुबे लबाब मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, पहली बात तो ये है क्यों डॉक्टर कि साहब, यही है ना? बिल्कुल यही है जी, अच्छा 100%। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों का काम है, अब अजाब आएगा कि नहीं, बस ये बताएं। ये खुदा आप जानेगा, ये खुदा बेहतर जानता है। जब ओ उन्होंने खुदा का खौफ करें, आपकी किताबें पढ़ के जो बंदा सुनाए उस पर अजाब आएगा। और मेरे भाई किताब देखें, आप चौसा मेरी बात सुने, आपने उनका लुबे लबाब बयान कर रहे हैं, आप उनकी किताबों का रेफरेंस नहीं दे रहे। मिर्जा साहब वो ने दे अगर नहीं है डॉक्टर साहब ने, एक घंटा हुआ लुबे वो मैंने तो रेफरेंस दे रहे किताब थे। के असली हरफ पढ़े हैं, चले कहें तो दोबारा पढ़ दूं। अब कल बात होगी इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह, अल्लाह अच्छा, हाफिज़, अस्सलाम मैं थोड़ा सा वालेकुम। इंटरफेयर कर दूं आपसे। जी जी हाँ जी, शामिल नहीं साहब। हाँ जी कर लें जी, आप वो जा रहे हैं मेरा ख्याल है। जी जी कर लें। अताउल कदूस साहब, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ। और मैंने आपको पर्सनली कुछ नहीं कहा था अलकदूस साहब, मैंने तो बस एक सवाल रखा था और सबूत के साथ रखा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर गौर करें ज़रूर। ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਸੌਰੀ ਆ ਅਤਾਉਲ ਗਿਆ ਕਦੂਸ ਵਾਪਸ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। मैं देखा पता नहीं, अगर फ्री है तो लाजमी आ ਕੱਲ जाएगा। ਸੰਡੇ ਵੇ, ਕੱਲ 5 ਵਜੇ। मैं डेफिनेटली कोशिश करा, प्रॉमिस नहीं कि मैं ਅੱਜ कोशिश ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਨੋ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। हाँ आज सुबह 5 बजे। Yeah. ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਲਵੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸਫਾ, ਜਲਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ शाहिद भाई एक मिनट जरा, एक मिनट खलो जो शाहिद भाई। अब्दुल ਮਾਰਹੋਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। सर जी मैं घंटा हो गया मैसी पर कहना ब्रोड ला के सौ जाते तुसी। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੈ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ सर ਹੁੰਦੀ जी ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਅਤਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਸੀਓ ਨਾ।
ਬਾਜੀ ਮਾਰਫਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ? नजर नहीं आ रही मारफत साहब, नजर नहीं आ रही। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਾਫਾਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। यार ਕਿਹੜੀ जरा ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ मारफत ਮੈਂ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ है मेरी मैं तो कोई नजर नहीं आ रही शायद तो नजर आ रही है नहीं आ रही। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? यार वेट करो मारफत साहब, कैमरा ते ऑन कर लो सोनियो। ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ? नहीं ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ। हाँ जी ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ये लगा ਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। हाँ ਮੁਨਾਫਕੋ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। तो की है तो ये गलत की है? लिखो ये गलत है ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਤੇ ਉਂਝ? ਮੁਨਾਫਕੋ, की क्या है और शायद साहब जरा समझाओ इन्हों की कह रहे हैं भाई इन्हों की ਸਾਰੀ है? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? वो की क्या है? ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। तो ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਣੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉੱਤੇ। वो एफआई 40 जिथे मर्जी दे दे भाई मैं तो एफआई कुछ ਤੂੰ नहीं कहना ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਸਹੀ 에어ਪੋर्ਟ ਕਿਸੇ ਤੇ। मारफत साहब ऐसा छोड़ दें। मारफत भाजी बंद कर दो प्लीज, हाँ, इसको रहने मेरा ओ मौका है भाई नहीं। मैं ओ मैं अच्छा, चलो जिथे ठीक है। शाह साहब अताउल साहब जी लिसन, जी ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਫਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ। ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਲੋਹਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, 5 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। अच्छा अच्छा ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ। अच्छा जनाब ये गल दसो ਉਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਉਹ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੜੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 6 ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ? 5 ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਬੁੱਢੀਆਂ। ਤੇ 5-6 ਇਹ ਆਪ 6 ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਲਾ ਹੱਥ ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਦਮ 6 ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਉਸਕੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ यार कदूस साहब 1 मिनट शूटर भाई शूटर भाई वो ना ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ डॉक्टर साहब ये देखिए
देख ले, हम 1.5 घंटे से वो गुफ्तगू सुन रहे थे, मिर्जा वल्दुजना साबित हो रहा था, उस पर बात खत्म हो गई है कि चल रही है अभी? मैं ये पूछना चाह रहा था। नहीं जी, नहीं वो हो गया, खत्म साबित हो हो गया, गई। बलदुल जना इनके साबित हो पास गया। कोई ਕੱਲ सबूत ਇਹਨਾਂ नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਰੱਦ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ अच्छा चलो, अच्छा चलो शायद साहब इजाजत दो मैनू बहुत ਇਹ ਅਤਾਉਲ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਓ ਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ शाह साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਖੋਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ, ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਬਰਾੜ ਚ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗੱਲ गाली कड्डी ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ तो उन्होंने थोड़ा अकाउंट दिखाया ना, होस्ट ने मना करता उन्होंने ना, गाली कड्डी उन्होंने। नहीं अकाउंट से मैं कोई गाल लिखी है, देखो कोई गाली नहीं हुई, कोई गाली नहीं हुई यार, प्लीज वन बाय वन, कोई गाली नहीं हुई। शायद साहब मेरा अकाउंट है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾउंट ਮੇਰਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾउंट ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੱਤ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਣੀ, ਉਹ ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਰਖੋਰ ਪਹਿਲੇ FIA ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਅਤਾਉਲ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ। ਮੈਂ ਕੋ 1000 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੀਆਂ ਤੇ, ਆ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1000 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 5 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਸੀਟਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗਾਇਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਲੀਜ਼ ਅਤਾਉਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੱਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ। मिर्जा साहब लोगों दी कुड़ियां नहीं छड़ियां। एक मिनट मैंने आज तक किसी की फैमिली टारगेट नहीं की। एक मिनट चोई साहब, एक मिनट मैंने चोई साहब एक मिनट, मैं ये सारा मेरा करने का मकसद ये था, मैं पिछले 2 घंटे से सुन रहा था। ये जब आए हैं ना तो इन्होंने आके डॉक्टर साहब को पता क्या बोला है, उन्होंने कहा जी आप कैसे किसी के उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो 4 साल पहले आप मौलाना लियास कादरी साहब के ऊपर इतनी खुराफात लगाई हुई है आपने फेसबुक पे, आपको किसने हक दिया लगाने का? भाई मैंने क्या खुराफात लगाई हुई है? मैंने क्या खुराफात लगाई हुई है? आपने को जो उधर टोंट की हुई है, फनी बना के पिक्चर लगाई हुई है, चौधरी परवेज लाई साहब का लगाया हुआ है, आपको किसने राइट दिया है? तो मेरे भाई जब आपने पाकिस्तान में आना ही नहीं है, पाकिस्तान आपका ही नहीं है, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम क्यों करते हो बार बार? एक मिनट ठहरो मेरे भाई, जरा तसल्ली से सुनो। परवेज लाही ने अलग टीवी पे कहा था कि मैंने यहाँ मसजिद बनाने में कादियानियों का लिखूंगा था, मैंने वीडियो लगाई हुई है, मैंने कल वीडियो लगाई है उसके ऊपर। अच्छा मेरी वो मस्जिद कहाँ गई आप बता दो। आप मस्जिद किधर गई? मस्जिद बन रही है अभी वो वाली। वो कहाँ कौन बना रहा है? परवेज लाई ने तो आपकी सारी मस्जिदों के बाद से मस्जिद लफ्ज़ हटा के इबादतगाह लिखवाया। मेरे भाई उसके कुछ अरसे बाद परवेज लाई कहाँ है? अब तक कहाँ है वो बता दो। वो तो पॉलिटिकल मामला है ना, वो तो पॉलिटिकल मामला है। आपके मसरूर साहब तो सऊदीया नहीं जा सकते। और मेरे भाई बदकिस्मत है वो, बदकिस्मत है। और मेरी बात सुनो, मिर्जा साहब कभी हाजी या उमरा नहीं कर सके, क्या वो बदकिस्मत है? बताओ अब बताओ। आप चले गए हो, मैंने देखी है आपकी तस्वीरें, क्योंकि आप इसलिए चले गए हो कि आप इंग्लैंड के शहरी हो गए। तो मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप मुझे बताओ कि आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगती, मेरी जमात की कोई है, तो आप जो मर्जी तस्वीर लगाओ अपनी। नहीं, आप डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब आप किसी के उसके ऊपर बंदे के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं, तो आपने 4 साल पहले इतनी खुराफात लगाई है यहाँ पे। मैंने तो आंखों देखी बात आपको सामने बता रहा हूँ कि परवेज ये बात, उसके बाद परवेज कहाँ है? आपका वो मसरूर तलत और नादिर पिछले 7 महीने से लगा के बैठे, आपने रोका उनको? ये काम शुरू ही उन्होंने किया। माखर भाई चले पर्सनल उनके साथ ना, वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जब से बैठे हुए कुदूस भाई मैं बता रहा हूँ, उनको सब्र कर लेना, रुक जाए। उन्होंने कोई अभी तक बदतमीजी नहीं की, कोशिश की है कि हमने भी उनको पर्सनल अटैक नहीं किया। अच्छा अली खान साहब 1 सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं फैमिली की ऊपर टारगेट नहीं किया आज तक, ये याद रखना। कोई नहीं। ओ मारखोर भाई मेरी बात सुने। प्लीज रुको यार सारे, एक तो मेरी सुन लो, मेरी कहानी जड़ी है ना, ये जो फुरकान फोर्स है ये तो मुसलमानों के लिए चलती फिरती जन्नत है, यहीं पे जहाँ पे मिले जन्नत। एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। आलमी मुकाबला लानत में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने साडे जड़े ने ना मुसलमान ओए सारे चुप करो प्लीज, आपको लेट हो रहे हैं, आप जाएं। अच्छा नहीं रुको। अताउल कदूस साहब, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई ऐसी हमसे जो हरकत होगी वो नहीं होगी, ठीक है? आपको कल आइएगा। देखिए मैंने आपने यार सुन लो 1 मिनट यार प्लीज, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लो प्लीज गाइस। ये पहले मरज़ई साहब हैं जिन्होंने पूरे तहम्मुल से बातें सुनी हैं और हमारे साथ अच्छे तरीके से डिबेट की है, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह इनको हिदायत दे। हम कोशिश करेंगे कि इनको सीधे रास्ते पे और जो हक और सच का रास्ता है वो दिखाएं, ठीक है? तो प्लीज नोबडी गोना डू एनीथिंग। बताएं हमने और मारखोर साहब कल से आपने ऐसा से बैठ के सुन रहे था। कोई ऐसी बात नहीं है, गुरु साहब आप जाएं। पहली बात तो ये है कि मैंने यही तो कहा है कि पहली बात तो फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये रहेगी नहीं होगी आज जो हरकत हुई है ना, आज के बाद नहीं होगा। क्या लगाते हैं वो आपका पर्सनल मामला है, उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया हो तो मुझे बताएं। नहीं ठीक है, वो मैं उनको समझा दूंगा। लो जी अताब भाई सुने, मेरी फैमिली की वीडियो बना के आपकी जमात के कादियानी मलंग में लगाई हुई है। देखिए मेरे भाई मैंने कि आप एक्स कादियानी हैं। देखिए मेरी बात सुने,
मैंने आते ही एक बात मेरी एक्स वाइफ की इन्होंने बकायदा एक आईडियो बना के अपने लो, चैनल पे गल करो। एक मिनट मैंने चौसा मेरी बात सुने, मैंने शायद साहब को आते एक बात कही थी कि जो भी बात एवर मेरा सका भाई भी अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो वो गलत है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, आप उसको गलत कहते हैं? चोई साहब एक मिनट, चोई साहब एक मिनट, चोई साहब एक मिनट, शायद भाई एक मिनट। कदूस साहब एक बात बताएं, आप मसरूर, तल्लत और नादिर को जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है आप ना जानते हो? हर जलसे पे वो बड़ा अपनी लाइव पे बैठ के एक मिनट अता भाई आप मिर्जा मसरूर अब ये बताएंगे कि वो बंदे कौन है? अब ये बताएंगे कि वो बंदे कौन है? मुझे वो बंदे चाहिए जो पिछले 6 महीने से बैठ के वो हर जलसे में शामिल होते हैं और सबसे आगे होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये तल्लत को ना जानते हो। ये अब बताएंगे यार तल्लत कौन है? मार्कर साहब प्लीज रुक जाओ यार, प्लीज क्यों इंज दी ज्यादतियां करते हो पे? मेरी बात सुने, अताउल कदूस साहब प्लीज तुसी जाओ, ठीक है। शाह साहब बता कि देखो इंशाल्लाह मेरे लो तुसी पक्के रह लो कि मेरी टीम जिन्नी भी है ना कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। ऐ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एज ए मुसलमान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ वर्ड देना वा, ठीक है, कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शाह साहब पहले भी आंदा किया सी कि मैं ना ते गंदी ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ मैं ऐसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੰਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ गंदी गाल नहीं कटी। कद्दूस साहब मेरी बात सुने, आपको डॉक्टर साहब ने या मैंने किसी ने गाली दी है, कोई बदतमीजी की है? आप थोड़ा सा ऐलान कर देना इस बारे में। नहीं देखें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने यही तो कहा है कि नहीं देखिए वो तो रेफरेंस है ना कद्दूस साहब, देखिए मेरी बात सुने, वो किताबों में लिखे हुए हैं, अगर मैं ठीक है पढ़ूं उसमें पढ़ने में वो गाली तो नहीं ना हम कह सकते मैंने गाली दी है। ये थोड़ा सा देखिए वो जो डिबेट हुई है उसका मैंने भी जवाब दे दिया, ठीक है ना। बस ठीक है, जो आपका मौकफ था हम उस पर कुछ बहस नहीं करते, लेकिन वो जो सबने सुन लिया, सुनने वालों ने, तो बस ये एंड ऑफ डिबेट में ये बनता है, आप जैसे होस्ट ने अभी ऐलान किया ना कि हमारी तरफ से कोशिश है कि आपने भी अच्छी गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने भी आपसे की है और हमारे पैनलिस्ट ने भी कोई ऐसी आपसे बात नहीं की जिसको आप कह सकते हैं हमने आपकी दिलादारी की है। जो रेफरेंस पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। अच्छी बात है। देखिए बात यह है कि किसी पहली बात तो ये कि हमारी कोई पर्सनल मामला तो है नहीं, मेरी जात के साथ या आपकी जात का कोई ताल्लुक तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक मामला है, उस पर हमारी डिस्कशन है। और दूसरी बात यह कि ना तो मैंने डंडे लेके आपको उस पर ले आना, ना आपने मुझे डंडा लेके अपनी तरफ ले आना। अच्छा कद्दूस अतार कद्दूस साहब, ये ना चौधरी साहब आपसे बात करना चाह रहे थे, वो भाई ने बीच में बात टोक दी उनकी, तो वो काफी देर से म्यूट है, जरा उनसे सुन लेंगे। जी चौधरी साहब। नहीं कोई बात नहीं, इजाजत है सर, बहुत थैंक यू। चौसा मेरी बात सुनिए, अता भाई टू लेट है, आप जा सकते हैं। चौसा मेरी बात सुन ले, मैं आपको सिर्फ आपकी पहले मेरी बात सुनी तो उसका मैं जवाब दे दूं। मैं जा रहा हूँ। बात ये है मेरे भाई, आप एमडी थे, आप एमडी से हट गए, ये आपका और खुदा का मामला है। मेरा मैं कुछ दरोगा नहीं हूँ कि आपको कहूँ कि आपने क्यों किया या क्यों नहीं किया, ये आप और अल्लाह का मामला है, ठीक है। आपको एमडी से बुराई नजर आई, आपको दूसरी जगह अच्छाई नजर आई, आप चले गए, ठीक है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और दूसरी बात ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चौधरी साहब ने कादियानियत छोड़ी, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन परवेज लाई ने मस्जिद के वो किया तो उसके साथ वो बुरा हो गया। वाह वाह वाह। देखिए मेरी बात सुने, जब आप किसी चीज को भी ललकारते हैं, आके ललकारते हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, अपना मार्को, मुझे नहीं आपका नाम पता, मैं तो अपने देखिए नहीं, यही बात है, मैं तो अपने असल नाम से आया हूँ, असल हर चीज़ है, मैंने तो कुछ छुपाई नहीं हुई कि मैं अब यहाँ कोई जिमी नाम बना के आ जाता आपको और आप मुझे पहचान भी ना पाते, ठीक है ना। बेशुमार लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हुए। कद्दूस साहब वो मिर्जा साहब ने भी अल्लाह अब्दुल्ला आथम को कहा था ना कि सच्चा जो झूठे की जिंदगी, जो झूठा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा, तो वो भी फिर मुतकबराना थी ना। साहब जिस तरह हमने 3 घंटे आपको बैठ के सुना ना, कभी आप जरा अपने मसरूर साहब की लाइव पर जाएं, देखें कैसे वो उधर बैठ के तो मरासवादियां कर रहे होते हैं, वो सुने जाके उसको मसरूर को 6 महीने से लाइव लगा के बैठा हुआ है। पूरी इंग्लैंड की क़यादत उसको जानती है, उस बंदे को। मेरे भाई आप कैसे नहीं जानते? पूरी दुनिया जानती हो। देखिए मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मैं उसको नहीं जानता, मैं उससे नहीं मिला हुआ। अच्छा भाई एक बात छोटी सी मेरी सुन ले कद्दूस भाई, फिर आपने चले जाना है। आपने निदा नसर और मिर्जा मसरूर साहब की आइडिया सुनी है? सर देखिए मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, प्लीज। क्यों नहीं पढ़ते?
तो साहब बस ठीक है, जाने दें इनको। ओके कदूर साहब, देखिए इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ये कह रहे हैं अखलाक की बात करें, अच्छे अखलाक होने चाहिए। आपने आइडियो सुनी है मिर्जा ताहिर साहब, अपना मिर्जा ताहिर की नवासी हाँ और जी, मिर्जा मसरूर की? हाँ जी मैंने सुनी है, क्या निकाल लो उसमें ओके, से? निदा नसर के साथ जो रेप हुआ है वो आपके ख्याल में ठीक हुआ है? क्या क्या उसे आपने सुनी है पूरी गुफ्तगू? मैंने सुनी है जी। हाँ जी, वो निदा 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 कभी उधर क्या लेने जा रही थी? वो किधर निदा कहे? नहीं, एक निदा रह गई थी कि उसको कभी वो भी बुरा तो वो भी बुरा, तो वो भी बुरा, तो वो भी बुरा। अच्छा, हाँ नहीं बताया ना मुझे, एक लड़की है, उसको जब पता चल गया कि ये बंदा बुरा है, उसके बाद वो दूसरे बंदे के पास भी क्या लेने जा रही है? मजे ले रहे एक थी, मिनट जी, सारे मजे ले रहे एक मिनट सर, एक मिनट। छोड़े सर, वो निदा मेरी में एक मिनट अताब भाई, वो निदा इधर उधर जा रही है, वो गलत थी। हाँ और मिर्जा मसरूर साहब फरमा रहे हैं हाँ कि अगर आपके साथ रेप हुआ है तो रेप करने वालों ने तौबा कर ली होगी, आप इस बात को छोड़ दें। किसी बच्ची के साथ रेप हो, बात तो सुन लें जी जी। वो कह रही है मैंने 8 साल की थी जब मेरे साथ 4 दफा हफ्ते में मेरा रेप होता था, ठीक है? अच्छा अच्छा। अब एक बच्ची ये स्टेटमेंट दे और आपके मिर्जा साहब जो आपके मौजूदा हेड हैं वो फैसला दें कि रेप करने वालों ने तौबा कर ली होगी, आप इस बात को छोड़ दें। अच्छा, छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाए तो करने वाले तौबा कर लें, तो आप समझते हैं कि मिर्जा साहब ने ये सही स्टेटमेंट दी है? सर बिल्कुल, मेरी बात सुने, आप मेरी थोड़ी सी बात सुनिएगा। आप हट हम एक थर्ड कर, अगर हमें घर में हमें ये पता चलता है हमारी कोई बेटी या बहन आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले किसी ने घर में ही उसके साथ हरकत कर दी थी, ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम एशियन लोग क्या कहेंगे? बेटा जो भी हो गया चुप कर जाओ, खामोशी इख्तियार करो, अब इसको अल्लाह करो और इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से डरो, आगे चलो। यही कहेंगे कि नहीं आप उसको उसकी अपनी बेटी को गंदा करेंगे, उसको पीछे निकाल लो? ओके, आपको पता, एक मिनट, आपको पता चले, एक मिनट जी, एक मिनट, आपको पता चले यूके में एक छोटी बच्ची के साथ रेप करते रहे हैं 5-10 जमात के बंदे। यार अगर आप लोगों ने बैठना है तो मैं थोड़ी सी वीडियो चला देता हूँ। नहीं यार प्लीज शाहद भाई, एक मिनट, इन्होंने सुनी हुई है वो आइडियो? नहीं, आपके हेड के इल्म में आए कि यूके के अंदर एक छोटी बच्ची है, भले उनकी अपनी सगी बेटी है जी जी, तो आप उस सगी बेटी को कहेंगे कि वो 8-7 बंदों का नाम ले रही है कि उन्होंने मेरा रेप किया जब मैं छोटी थी, तो आप उसको कहेंगे चुप कर जाओ? नहीं, तो उन्होंने क्या क्या कि आप जब आपको एक दफा पता चल गया था तो आप दूसरी दफा दोबारा क्यों गई बार बार उसके पास? कहा नहीं उन्होंने ये बात? उन्होंने क्या कहा था कि आप जब आपको एक दफा पता चल गया बंदा बुरा है तो आप दोबारा उसके पास क्या लेने जा रही हैं? किस बंदे के पास? जो भी है उस वीडियो में, ऑडियो में आप नहीं, उस बंदे उसने किस बंदे का नाम लिया है? जिसका भी उसने ले रही है, आमर या जो भी है, उसने कहा ना, उसने कहा है, आपके मिर्जा साहब ने ये कहा है कि जब आपके साथ ये होता था तो आप अपने बाप के पास क्यों आती थी? आपको आइडिया सुनाए? सर देखिए मेरी बात सुने, मैंने सुनी हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ मैं सुनी हुई है, और उसके मैंने आपको लुबे लबाब दिया है। जब आपको 10 साल बाद 20 साल बाद पता चलेगा कि 8 साल बाद, आज से 15 साल पहले आपकी बेटी या बहन या कोई भी आपकी कजन के साथ ये माँ, तो आप उसको घर वाले माँ भी यही समझाती कि बेटा आप खामोशी इख्तियार करो। बाबा बात सुने, एक बच्ची जो छोटी है, अंडर एज है, 8-9 साल की है, तो उसका रेप कर रहा है एक ग्रुप। मेरी बात तो सुन लें। अच्छा, मैं उसको ये कहूंगा कि उस ग्रुप ने जो आपके साथ रेप किया है आप चुप कर जाएं, मैं ये कहूंगा? तो भाई उसको तो अब उसको आप रेप, अब उसको क्या करोगे? 20 साल में अपनी बेटी को बाद गंदा करोगे? एक मिनट चोई साहब, 1 मिनट से दीगा, फिर बात मुझे भूल जाएगी। चोई साहब 1 मिनट, आप ये बताएं, चले निदा नसर को ने बोल दिया मसरूर साहब ने कि इस मामले को रफा दफा कर दें। अभी ये सिखों का मामला हुआ है, हर जगह कादियानी बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मौलवी, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तान वो, ये गलत हुआ है, ये सिखों के साथ गलत हुआ है। माजरे तो डॉक्टर चोई साहब की बात चलने दें प्लीज, वो टॉपिक बदल जाएगा प्लीज यार, 1 मिनट। हाँ जी सर। और मेरे भाई पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये बताया, अगर मैं भी वहाँ पे हूँ और मुझे भी ये पता चले कि ये हुआ, तो उसको अब 8 साल को मैं, आप 25 साल, वो अब कितने साल की है वो, मैं 8 साल की उम्र पीछे ले जाऊँ? जब उसको खलीफा राशिद खुद उनके वालिद साहब जिंदा थे। आपका ये कहना है, मेरी बात सुने, आपका ये कहना है कि अगर 10-15 साल पुराना किसी छोटी बच्ची के साथ एक ग्रुप रेप करे
तो उसको मशवरा देना चाहिए, चुप हो जाए, और मिर्जा साहब ने ये सही किया? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही किया, यही जवाब देना चाहिए, यही जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल यही जवाब देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात हाँ जी। दूसरी बात, जी वो बच्ची कह रही है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी काफी देर से मिर्जा साहब, तो मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि हमने एक फोरम बनाया हुआ है, वहां जाके शिकायत करें। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यूके के अंदर जमात रेप के फैसले भी करती है। बात सुने, पहली बात सुने, आपको जब जमात का पता ही नहीं है, जमात के कज़ा का पता है, कज़ा में जमात में कज़ा का एक मुझे डिपार्टमेंट- कज़ा का पता है, मैं उहदेदार था। मेरा सवाल सिंपल ये है हाँ जी, तो फिर कि उहदेदार के पास मिर्जा से- साहब, मेरी बात सुनने बारी से, मिर्जा साहब ने यूके के अंदर रेप जना किसी आमदी बच्चे से हो, उसके लिए एक फोरम बनाया हुआ है। वो मिर्जा साहब वहाँ ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपके साथ रेप हुआ है तो हमारा एक फोरम है, वहाँ जाके आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करें। ये स्टेट अंडर स्टेट नहीं है? जी सर। इनको लगता है कॉल आ गई है। अच्छा, अगर दोस्त माइंड ना करें तो अताब भाई बात करना चाहें 2 मिनट तो मैं कर लूं। अताब भाई जी। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जी मैं सुनाएं। आपको कह रहा हूँ कि बात सिर्फ रेप की नहीं है, जमात का एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म जमात है, इसका अपना डिपार्टमेंट है कज़ा का, इसका अपना डिपार्टमेंट है अमूर-ए-आमा का, इसका अपना डिपार्टमेंट है एक इस्लाही कमेटी का, जिसमें एक नहीं कई चीजें डिस्कस होते हैं, जिसमें निकाह के मामले डिस्कस होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के मामले डिस्कस होते हैं, जिसमें घरेलू मामला डिस्कस होते हैं। रेप फौजदारी केस है, रेप फौजदारी केस है, रेप के लिए भी आप लोगों का फोरम है। फिर तो उधर निदा जाती फौज के जाके दे देती उसको, पुलिस को इत्तला दे नहीं देती नहीं, उसको बारी बारी बात करें। रेप के लिए भी जमात ने फोरम बनाया हुआ है कि रेप का मैं भाई आपने आपको- लोकल नहीं, पुलिस के बात पास रेप- नहीं जाना। भाई बात ये है, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बात रेप का नहीं है, प्रॉब्लम है कि एक मियाँ बीवी का प्रॉब्लम, वो भी उसमें जाए। किस में जाए? जाए कज़ा में जाए, अपने हमारी जमाती यूके के कानून में क्यों ना जाए? तो फिर जाए, वो चली जाए उसको। नहीं नहीं, मिर्जा साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर भाई आप हम- जाओगी तो फिर जमात एक्शन लेगी। मैं उनको मना नहीं करूंगा, वो धमकी दे रहे हैं उसको। नहीं यार, बात ये है कि जमात ने जब जमात का एक अपना निजाम है, एक अपनी जमात और का यूके के अंदर है, यूके के अंदर अपना जस्टिस का निजाम है। यूके हो या अमेरिका हो या कनाडा हो या रब्बा हो या पाकिस्तान हो, जब हमारा एक निजाम है, हम अपने निजाम के साथ रहते हैं भाई। उसको बोलते हैं आपको स्टेट क्या- अंडर स्टेट, आपको- हुकूमत देखिए के अंदर मेरी बात- हुकूमत। आपको नहीं, एक जो बात सब क्लियर इससे करें, प्रॉब्लम- एक आपको बात, प्रॉब्लम क्या? एक मैं कहता हूँ ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ओ भाई- आमदियों की जिंदगी जहन्नम बनाई हुई है। तो भाई आदमी ना रहे, चले जाए, छोड़ दे, क्यों नहीं जाते? आप कानून क्यों तोड़ते हैं यूके का? यूके के कानून के अंदर ओ आपने भाई, फोरम यूके बनाया के हुआ है अलावा- जस्टिस ओ का। भाई, यूके हो या अमेरिका, ये एक मुनज़्ज़म, पूरी दुनिया में एक निजाम है हमारा, हमें यूके हो यही तो अमेरिका हम हो, बात करते हैं। मेरा जी? फिर सवाल आप सुन लें, मेरा सवाल सुने, मुख्तसर पे जवाब दें। जमात ने जस्टिस सिस्टम जो है अपने मेंबरान के लिए खुद एक तैयार किया हुआ है हर मुल्क के अंदर, ये बात आप कहना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो, हर मुल्क के अंदर नहीं, हर मजलिस के अंदर हमारा हर एक निजाम है जमात का। महाफिज चले मेरा ख्याल में जी जी अपना जी, शाह साहब? बताएं, करें बात। शाह साहब मेरा ख्याल- ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। भाई साहब अच्छा, बात एक और है, एक और बात है। मिर्जा ताहर साहब, आप उनको मर्द मुजाहिद और मर्द खुदा और शेर और जिस तरह जमात का कहते थे, और उनकी जमात बड़ी तारीफ करती थी। उनकी नवासी कह रही है कि मेरे घर में, यानी कि वो घर भी जहाँ मिर्जा साहब रहते थे, ताहर साहब, वहाँ वो लड़की रहती थी, वहाँ उनका दामाद रहता था, घर दामाद था मिर्जा लकमान, वहाँ वो रेप उसका होता रहा है। ये हालत है खुदाई खलीफे के घर की। मेरे भाई पहले एक बात बताओ, जी, हजरत नूह का बेटा तो क्या हुआ था? उसका सका बेटा नबी का बेटा था। साहब ये लाशी आप पहले नहीं, ये इस बात का जवाब दें, उसका जवाब मैं देता हूँ, उसका मैं जवाब, चले मैं आपको देता हूँ, पहले इसका जवाब दें। मेरी बात सुने, चले मेरी आप बात सुने कि आप मिर्जा साहब के आपको जो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई। मिर्जा हाँ। नवाजुबिल्लाह को मिर्जा साहब ने कोई उसका किया था? आप क्या? ऐसी बात
आप बात वो कर रहे हैं। मिर्जा ताहिर साहब के घर में उसका दामाद उसी के घर में और यार रेप घर कर में रहा मिर्जा है साहब अपनी घर में- बेटी का। बात तो सुन लें, बेटी जी। का रेप हो रहा है और मिर्जा साहब खुदाई खलीफा होने का ये ऐलान करते हैं कि मैं जमात के सारे जितने मसाइल है मुझे खुदा बयान कर देता है, बता देता है, मैं सब के हल कर रहा हूँ। घर में सगा दामाद अपनी बेटी से रेप कर रहा है छोटी बच्ची के साथ, मिर्जा साहब को पता ही नहीं चला। अच्छा मैं ये अभी बस इसका जवाब, एक जवाब हमें देना भी, अब जाना नहीं, ठीक है ना। नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं तो नहीं जाता। आप ये बताएं, जब हजरत अब उसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब काफिले में पीछे रह गई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नाराज हो गए थे हजरत देखिए आयशा सिद्दीक़ा से? आप देखें, मेरी बात सुने, मिर्जा इसका मैं जवाब, चले आप बात कर लें, मैं आपसे लेकिन ये मैं कह रहा आपको, हूँ, मैं हाँ, आपसे कह रहा हूँ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब काफिले में मेरी पीछे मेरी रह- मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तहरीर है, वो फरमाते हैं कि वो पाक और मासूम नबी, ठीक है। ठीक है, आप मिर्जा साहब को सच्चा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। जब मिर्जा साहब गवाही दे रहे हैं कि वो नबी पाक है, मासूम है, फिर आप ये सवाल क्यों करते हैं कौन सा? जो अभी आपने ये हजरत आयशा सिद्दीका के मेरे ऊपर भाई मैं आपसे बात की है? देखे जो सब आप मेरी बात तो पूरी सुन ले। आपने एक जी ये पूरी कहा- सुनाए, पूरी आपने सुनाए कहा- आप। आपने कहा जी मिर्जा साहब के घर में ये उतरा तो मिर्जा साहब खुदा का था तो उनको पता क्यों नहीं चला, इल्हाम क्यों नहीं हो गया कि उनकी हाँ बेटी जी। का क्यों हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा, हाँ जी। मैंने आपको यही कहा कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे रह गई थी काफिले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नाराज है, क्यों हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी को लेकर घर चले गए, और क्यों फिर अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बाद में बताया और आपने फिर उनको मनाया और वापस आई तो उन्होंने कहा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा मुझे मेरे खुदा ने मेरा सच्चा साबित किया। तो मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले क्यों पता चल गया कि वो रास्ते में रह गई थी? देखें जो बातें आप देखें खुदा के और आप मेरी ओके, आप मेरी बात सुन लें, ठीक है, मैं आपकी बात सुन ली है जी, मेरी बात सुन लें, ठीक है। हाँ जी जी, बात यह है कि जब आप अपनी बेटी से जिना करने वाले कादियानी पीरों को हजरत आयशा से मिलाते हैं, आपको खुदा का खौफ नहीं आता? मेरी बात सुने, देखिए मैं आपको हवाला, देखिए आपने शुरू किसने किया? नहीं, आप अल्लाह के रसूल को सच्चा भी मानते अल्लाह हैं का रसूल और नबी फिर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अपनी मेरी बेटी बात से सुनो, जिना हम करने वाले हर कादियानी मामले पीर को में बचाने के लिए उसी देखिए, नबी की जात पे हमला करते हैं, आपको शर्म नहीं गलत आती? लेके जाएंगे, आप गलत लेके जा रहे हैं। मेरे नहीं। लिए मेरे आका मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्जांपल है, मैंने हर चीज उनकी सुन्नत और एग्जाम्पल कुरान है, से ली। हाँ। उनसे जब ले ली आप मैंने। उनको जब मैंने आप आपको जब उनसे उनको हवाला एग्जाम्पल दिया, मानते हैं तो आपको हवाला उनको मैंने हवाला हाँ। दिया, अब उसमें भी फट गया कि ये क्यों कर रहे हैं। अब देखिए मैं और क्या कहूं, मैं कहां से मैं बोलूं इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी बेटी से जिना करने वाले एक बदकार को छुपाने के लिए आप नबी की जात पे हमला कर रहे हैं, मैं मैंने इसलिए ये आपको नहीं मना कहा, कर रहा हूँ। नहीं मैंने ये नहीं कहा, हल्के नहीं अपनी आप बेटी से जिना करने वाले कादियानी पीर मिर्जे को सच्चा आप करने अपनी के लिए बेटी आप का नबी की जात पे हमला कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बेटी का जिना करवा लोगे, मुझे बताओ। नहीं, करवा लोगे? आप कादियानी पीर के नहीं, जिना कौन को सा छुपाने के बाप लिए है? नबी की जात पे हमला कर रहे कौन हो। वो बाप है जिसकी बेटी का जिना हो और बाप चुप करके बैठा रहे, मुझे बताओ ना, कौन है वो बाप? वो उसकी बेटी से जिना हो, वो है कादियानी पीर मिर्जा लकमान, जो खुद भी करता है और दूसरों से भी करवाता है। और तो वो भाई बाप मैंने नाम बता दिया आपको। देखें अगर वो करता है या करवाता तो वो खुदा जाने, खुदा सा मामला। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ उस करने वाला? आप उनको जनती फिरके का सरदार मानते हो, किनको? कादियानी पीरों को। और मेरे भाई कौन से पीर, कादियानी पीर कौन से? आप कहते हैं 72 दोज की एक जनती, वो है जमात अहमदिया। 100% जमात अहमदिया की क़यादत किसके पास है जी? मिर्जा फैमिली के पास। मिर्जा फैमिली का बंदा अपनी बेटी से जिना करता पकड़ा गया है, इस ठीक तरह है। के होते हैं जनती। अच्छा मेरी बात सुनो, जी सुनाए। आप ये बताओ कि इस्लाम को आप मासूम मानते हो? बिल्कुल मासूम मानता हूँ, जमाती मासूम है। फिर सवाल क्यों उठाते हो? तो फिर आप क्यों मेरी बात सुनो, तो आप जो मर्जी इल्जाम लगा लो और मैं हम इल्जाम नहीं लगाते, नहीं हम इस खानदान को गलत मानते हैं, हमारा हक है सवाल आप करना। मानते हो भाई, आप जब पाक मानते हो, या तो आप कहो कि हम पाक नहीं मानते, हमारा भी वहां सवाल बनता है। नहीं मेरी बात सुनो, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उनके खुलफा को हाँ पाक भी मानता हूँ, खुदा के बरगज़िदा भी मानता हूँ, खुदा के चुनीदा भी मानता हूँ, समझे? हम नहीं मानते। आप ना माने, मैं आपको जबरदस्ती हमारा सवाल बनता है। आप करते ना सवाल,
आप करते हैं, आपको आप जवाब दे दिया। नबी पाक को पाक मानते हैं, फिर आपका सवाल बनता नहीं है। नहीं जब आप मेरी मासूम नहीं का नहीं मतलब नहीं है, मैंने मिर्जा साहब आपको फरमाते हैं कि वो मासूम है। देखें मेरी जब बात। एक नबी मासूम है, फिर अच्छा आप एक सवाल क्यों मिनट, उठाते हैं? आप नबी पाक को पाक मानते हैं ना? क्या? आप सल्लल्लाहु को तो मासूम और पाक मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। तो मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप फिर भागते क्यों हैं? आप इसलिए एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, आपको शर्म नहीं आती। आप एक बदकार के यार जना को अजीब छुपाने के लिए अजीब नबी की जात पे अजीब हमला करते आदमी हैं। हो, अजीब आदमी हो। पहले खुद ही सवाल करते हो, जब आपको उसको मैं रेफरेंस से जवाब देता हूँ। मैं ना कोई ना इल्जाम लगा रहा हूँ, ना बाबा, कुछ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप अब बकायदा आपको, अब अल्जाम, आपने मुझे आप गालियां इंसल्ट देनी कर है। रहे हैं। अब आपने मैं आपको बदतमीजी भी करनी है, आपने मैं, बदतमीजी भी करनी है, भाई गालियां भी देनी है, मुझे पता है ना आप 1 घंटा बात करें, मैं गाली नहीं दूंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। अगर एक मोहल्ले की कंजरी जो है वो पकड़ी जाए हीरा मंडी की जना करती, अच्छा और मैं कहूं कि वो आपकी माँ पे भी इल्जाम लगा था, तो मैं आपकी माँ की बेइज्जती कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? पहले आप ये बताएं। देखो, देखिए अगर मेरी वहां पे लगा था इल्जाम, तो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कौन सी बेइज्जती की क्या? कौन सी बात? फिर इसका मतलब है मेरे दिल में आपकी माँ का कोई एहतराम नहीं है, मतलब ये है सीधा सीधा। बात ये नहीं है मेरे भाई, मेरी बात नहीं है। हाँ आपने हाँ। आपने डायरेक्टली जो बात की है उस पे कायम है। आपने कहा है कि आपने देखें, ये आप एक देखें जना वाली औरत को छिपाने के लिए देखें नबी की मेरे जात भाई, पे हमला मेरे करेंगे भाई और नबी को पाक भी माने, ये दोनों बातें देखें इकट्ठी नहीं हो सकती। देखिए, आप ना जानबूझ के, आप सुनने वाले सारे सुन रहे हैं। आपने एक बात जो किया, पर उस पर टिके रहे ना, आप कदम तो रखिए। आपने कहा है जी कि मिर्जा, आपने ये साबित करने की कोशिश किया है मिर्जा ताहिर की, जब नवासी के साथ हुआ ताहिर अहमद की, तो वो जानबूझ के, यानी कि वो खुदा का नबी था, कहता मैं खुदा नबी नहीं, यानी कि है खलीफा है, तो उसको अल्लाह ने बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। वो कहता मैं खुदा का मर्द मुजाहिद हूँ। आप यही बताना चाह रहे थे, तो मैंने वही आपको साबित किताब, आप भाग गए। आप उधर तो इधर चलना नहीं शुरू नहीं, कर मैं दिया। भागा नहीं हूँ, मैं भागा नहीं हूँ। तो फिर आप उसको माने। मैंने तो मैं मिर्जा ये साहब का कहता हूँ, जो हवाला खुदा दिया। ताला ने, भाई बारी से बात करें, बारी से बात करें। हाँ जी, अगर वहां इल्जाम लगे, जितने मर्जी लगे, आपके गुरु साहब जिनको आप सच्चा मानते हैं वो हैं जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब। अच्छा जी, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का अपनी तहरीर है कि वो मोहम्मद जो मक्का में पैदा हुए वो मासूम थे, पाक नबी था। बिल्कुल है। जब पाक था, मासूम था, तो मिर्जा साहब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकीजगी की, मासूमियत की गवाही दे दी। वो पाक, वो सच्चा नबी। ठीक अब है। पाक नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने बता दिया है कि ये मामला बिल्कुल साफ है, इसीलिए आप मिर्जा साहब ने गवाही दी है। जब आप मिर्जा साहब की गवाही मान ली कि वो नबी पाक है, फिर आप एक बदकार औरत और बदकार कादियानी पीर जो अपनी बेटियों से जिना करने वाले हैं, उनको छुपाने के लिए भी उस नबी की जात पे क्यों हमला करते हैं? बताएं। अजीब अजीब आदमी है यार। मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो कोई हमला नहीं किया, नाउजुबिल्लाह। जब उनकी पकीजगी साबित है, फिर सवाल बनता नहीं था और आपका। मेरे भाई, आप निदा के जिना को देखे, छुपाने के मेरी बात लिए सुने, मेरी बात नबी की सुने। जात पे क्यों हमला कर रहे हैं? मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि मैं मिर्जा ताहिर अहमद साहब को खुदा ताला का खलीफा मानता हूँ, मैं नहीं ना मानता, मेरा तो सवाल बनता आप है। देखिए मेरी बात सुने, आप न माने या आप नहीं ना मानते, मैं इसलिए सवाल करता हूँ। आपने साफ सवाल किया ना, तो आप जिसको मानते हैं हाँ? उसका तो आपको वाला दूंगा आप जिसको पाक मानते हैं, जिसकी ऑलरेडी और मेरे भाई सर्टिफाइड पकीजगी आप मानते। मेरी बात सुनो। हाँ, अगर आपने मेरे ये मुझे बात सवाल किया है, तो मैं जवाब आपको क्या हजरत अबू जेल की से दूंगा, या मैं आपको आप कोई, उसका जवाब दें, आप उसका जवाब दें जो तो मैंने हुआ भाई हुआ यही है। तो मैंने आपको ये ठीक बताना है, है। तो आप आप देखें, एक कंजरी की मिसाल जो है, जिस नबी को आप देखिए मेरी पाक बात सुने, मानते हैं, चौथा मेरी उसकी बात, बीवी के साथ आपको जाते मैंने मिला दें। मिसाल दी है ना, अब आप उसको हजम करें और उसको बात को खत्म करें, आगे चलें। आप क्यों उसको हजम करूं? मैं ये कह सकता हूं कि आप नबी पाक को सच्चा नहीं मानते, मैं आप इसलिए ये सवाल करते हो। आप तो मुझे जो मर्जी कहते रहे, मैं आपकी जुबान नहीं पे नहीं, रोक मैं सकता हूँ। कहता नहीं, मैं तो विद दलील कहता हूं। नहीं, अगर मैं ये तो मैं और मेरा खुदा जानता ना, मैं कितना उनको, क्या मैं तो आपसे ज्यादा अफसर मानता हूँ। नहीं नहीं, आप खुदा क्या, नहीं जानता, जो आप मुंह से बोलते हैं पता चल मैंने रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको एक मिसाल दी है, उस पर मैं कायम हूँ मेरे भाई, मैं भागा मिर्जा नहीं साहब हूँ। फरमाते हैं, दोबारा आगे चलते हैं। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि वो नहीं नहीं, मसूम बस नबी है। आगे नहीं चल रहा, नहीं आगे नहीं, आगे नहीं, जब टाइम आपने नहीं, 4 बज मसूम गया। मान लिया, नहीं, मेरी बात 4 सुने, बज गया, जब आपने 4 बज मसूम गया, मान लिया, फिर सवाल नहीं है। आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब आप दे दिया। मुझे बताएं कि कादियानी पीर के घर जना होता है, सुबह आप उठ के अच्छा, उसको मर्दे एक मिनट, खुदा कहते हैं, ये कि छोटी ये सी क्या है? बात है, छोटी सी बात है। जी जी, कहते छोटी सी हैं सुनाई। जो आप नबी वसल्लम को तो मानते हैं कि नहीं मानते? किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं?
अच्छा, जब उन्होंने फरमाया है, खुदा ने फरमाया है कि पर्दा रखो, चीज़ों अगर पता जाए तो उसको दबाओ, ऐसी चीज़ों को पर्दा रखो ताकि खुदा तुम्हारा पर्दा रखे, तो आप पूरी नहीं समझते थे। लगाया बात सुने, मेरे भाई, मैंने नहीं लगाया, ये तो बिल, हाँ, ये तो किसने नबी लगाया? ये तो आप सल्लल्लाहु किसने अलैहि वसल्लम बता गए लगाया? भाई, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं आपके नजदीक के ये है जनती टोला, आप ये कहना चाहते हैं? देखें मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहा, मुझे बताओ जब हमें काफिर करार दिया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कह गए आपके नजदीक के ये है जनती मुझे एक टोला, बात आप ये नहीं, कहना चलो एक बात चाहते हैं? बताओ, नहीं मैं वही बताऊं, नहीं नहीं, मशरक नहीं, हजरत ने आपने फरमाया, हजरत ने फरमाया, हजरत ने फरमाया ये जनती टोला है जो जमात है आपके नजदीक, बिल्कुल यही बात है? बिल्कुल, मेरी बात सुन लो आगे, एक मिनट छोटी सी नहीं बात सुन लो, नहीं, मुझे आगे मैं बताओ फिर जब सुनूंगा, 74 में, जब आगे मैं 70 आगे अब मेरी आगे मैं बात फिर तो सुनो ना, सुनूंगा, ओ भाई मेरी बात तो ना सुनो, आगे मैं 74 फिर में, सुनूंगा। ना पहली मेरी बात, 74 में जब हमें काफिर करार दिया तो अखबार मशरक हमारा था कि आपका था? आप 72 वहां एक साइड हो गए, 73 में सिर्फ आप लोग थे, आपको अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया कि आप जनती टोला हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे ओके, चलो। चौधरी साहब ठीक है। 1 मिनट देंगे? आप चौधरी एक साहब मिनट 1 जी, सेकंड। एक मिनट नहीं सर एक मिनट, अब बस जवाब दे दो, जो बस चले, जनती अल्लाह टोला, हाफिज। अब जो नहीं, अब जो जनती टोला है उसका जो गुरु है उसके घर में उसका सर अपना बस आगे ना, दामाद आगे अपनी बेटी से जिना कर रहा है, ये जनती देखे टोला ना, है? अब आप जातियात पे आ रहे हैं, गंद पे आ रहे हैं, तो अब ये आते हैं, जाति मैं नहीं तो है, जवाब नहीं सकता। आपके गुरु के घर में उसका दामाद अल्लाह अपनी बेटी हाफिज, से जिना कर रहा है, ओके, खुदा सबूत हाफिज मैं साहब। आपने को दिया है। नहीं, मैं इसकी इतनी गंदी बातों का जवाब देता हूँ ना, मैं ये जानता चले पढ़ूंगा। गंदी का नहीं दे, मेरी बात का जना जवाब दे करने दे के जाते लिए जाते। आप चौधरी जना साहब 1 उसके साथ मिनट, कर, आप जना चौधरी कर साहब सकते जना हैं को तो आप नहीं छोड़ें, दे सकते? चौधरी साहब जना को मैं छोड़ें। अब एक आगे मिनट जी, ये एक मिनट सर, एक मिनट, चले जी, आप कर ले। ये 73वां जनती टोला, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, आप मुझे खुदा जवाब हाफिज। दें, चौसा जिसके मैं घर में जना हो इस तरह का जनती टोला होता है? चौसा मैं देखें, वो खुदा साबित कर रहा है, आप जो मर्जी करते रहे। साबित तो सामने है, आपके गुरु मिर्जा मसरूर साहब ने फरमाया है कि आपके साथ हुआ है, ये मेरे नहीं हुआ, भाई, बस चुप कर दो, भाई साबित है। बात सुने, कहते हैं व्हेन फिगर स्पीक्स नो नीड टू स्पीक, जब खुदा ताला आप लोगों को मुखालफत करने वालों को नाकामी नामुरादी आपके नसीब में लिख दी गई है, तो मैं क्या आप कर सकता हूँ? तकरीर ना करें मिर्जा साबित खुदा कर रहा ने, हूँ, ओ आप भाई ये साबित कर रहा साबित हूँ। कर, खुदा ने ये सबूत दिया कि अच्छा ये ये बताओ, कादियानी जमात पीर अपनी अहमदिया, बेटियों से जिना करते हैं, जमात अहमदिया फैलने से रुक गई है? बता दो आप, और बंद रुकना हो गई है? छोड़े, अपनी बेटी से जिना किया है कि ओ नहीं मेरे किया भाई, कादियानी जमात, पीरों ने, ये ओ जवाब भाई दें। मुझे बताओ, 150 साल से आप निदा मुखालफत कर नसर, रहे हो, निदा 150 नसर के साल साथ से जिना किसने किया है, यार। ये आप आज तो जवाब ओ दें। भाई, आप तो मिर्जा साहब से लेके गुलाम मिर्जा ओए बाबा, निदा नसर के साथ जिना किसने किया है, टू द पॉइंट जवाब दें। एक मैं सवाल जवाब मुझे नहीं भी सकता इसको। पूछना है। अल्लाह हाफिज, आगे चलो। ऐसे गंदी मिर्जा मिर्जा ना ऐसी निदा घटिया, नसर के ना साथ किसने इतनी जिना किया भाई है, इसका मेरे जवाब दें। भाई, ना मैं इतनी गंदी घटिया बातें किसी के मुतल्लिक ये करता चौधरी साहब घटिया एक सवाल बात मुझे नहीं भी है। पूछ लेंगे हाँ जी, आप पूछ लें जी, पूछ लें। जी। ये निदा नसर, ये जो आपके सो कॉल्ड खलीफा आपने बनाए, उनकी ब्लड लाइन में से है ना? भाई आपने क्या निकाला है इसमें से? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, ब्लड लाइन में से है ना मुझे उनकी? नहीं पता भाई। अच्छा, चलें, सही है। बता दें, ब्लड लाइन बता दें, नहीं है। माहौर में बताएं इनको कि हाँ जी, कौन सी नहीं ब्लड जी, लाइन नहीं, से है। ब्लड मुझे लाइन, नहीं पता। ब्लड लाइन में ये हलाफते बता रहे हैं, सो कॉल्ड हलाफते, ब्लड लाइन। चलें, जना को छोड़ें, हम नहीं हुआ उसके साथ जना। ब्लड लाइन इनकी ऐसी है कि इनकी अपनी घर की बच्ची उठ के इनके ऊपर केस कर रही है। करने दे वाह यार, वाह, तो मेरी आप बात दुनिया सुनो, को और क्या मेरे सिखा भाई रहे हैं मेरी फिर? बात अरे इससे तो आप बेड़ीचोद अच्छा साबित हो रहे मुझे हैं ये सारे बताएं, कादियानी। मेरी मुझे बात ये सुनो, बताएं, सब एक मिनट भाई, बेड़ीचोद अफजल, अबे सारे कादियानी बेड़ीचोद हैं। अफजल भाई, सारे कादियानी बेड़ीचोद हैं। अफजल भाई, बेड़ीचोद। अफजल भाई एक मिनट। अच्छा, इस तरह के पीर आपको जन्नत में ले जाएंगे अता भाई? जी जी बिल्कुल ले जाएंगे, आगे चले बस। जिनकी खामोश हो गए। बेटियां उठ के कह रही हैं कि हमारी हिफाजत नहीं हो रही वहां पे, सर, मैंने और ये बात- सिखी को बता रहे हैं मैंने- कि पाकिस्तान के मुसलमान गलत कर रहे हैं। वाह भाई वाह साहब, वाह मैंने वाह। बात बेड़ीचोद है ना, मैंने- सारे के सारे बेड़ीचोद हैं ये लोग, भड़वे, सब बेड़ीचोद हैं ये, भड़वे की औलाद। अबे तुम्हारी माँ को चौदह, भाई- अपनी बेड़िया चौथी मादर चौदो। अफजल भाई प्लीज गाली नहीं देखें। कदूर साहब वो ना अफजाल अंकल, शाद भाई एक मिनट शाद भाई, मैं बता दिया ये गोगी अफजल भाई बट को, आया मैंने था, टच उसको कर दिया। किसने उतारा नीचे? पता नहीं, मैंने नहीं उतारा। कदूस भाई वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का पोता था, मिर्ज़ा महमूदुद्दीन बशीर का बेटा मिर्ज़ा नासिर,
ٹھیک ہے, اور مرزا طاہر جو ہے اس کی بیٹی تھی فائزہ, اور میرے ٹھیک ہے, بھائی اور مرزا علی صاحب سن لینا یار وہ مارکر بھائی کو پتا نہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں, وہ ان کو پتا نہیں ہے یار, لیکن صبر کر لو, آپ کو نہیں آپ بتا دیکھو رہا. آپ لوگ کرتے رہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں, سن تو لیں میرے بھائی, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے نہ میں نہ کسی یار میں خاندان وہ پہ، میرے بھائی نہ کو میں پتا گھر نہیں پہ ہے, وہ بول رہا میرے سے پرسنل پوچھ رہا ہے, اس نے میسج کیا مجھے رشتہ پتا نہیں, بتا دے, میں ان کو بتا رہا ہوں, آپ نہ سنیں میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. یار, آپ نہ سنیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے قدوس صاحب, سی یو لیٹر اینڈ سی یو ٹمارو. اوکے چلیں آپ مجھے سنائیں جی, وہ مرزا صاحب کی بیٹی کا جانے دیں کون اس سی, کو آپ یار. مجھے سنائیں. یار آپ لوگ ادھر ڈبیٹ کر رہے تھے اور میں ادھر, اچھا چلو ایک سیکنڈ رکیو ذرا, ہوں ایک تو میں گل دساں, میں پیٹرولنگ کرنا سا پیا تے انکل افضال آپ کے منہ سے ایسی آوازیں میں نے پہلی دفعہ سنی ہیں. یار غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یہ دوسرے تمام مولویوں کو یہ زانی, بد کردار اور لونڈے بال سب کچھ کہہ دیتے ہیں, جب پورے اپنے سکھوں کو ان بتا کے رہے ہیں نبیوں بیٹھ کے کے گھر لوگ. کے خاندانوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ اٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے چودا ہے, ہمارے بھائی نے چودا ہے, ہمارے ماموں نے چودا ہے, حتیٰ کہ ان کے خلیفہ جو ہیں یہ حرام زادہ مرزا مسرور جدیدہ سور, اس نے بھی چود دیا ہے, اس نے بھی اس بچی کو چودا ہے. دیکھیں جی شاہد بھائی, آپ کہہ رہے ہیں گالیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ پچھلے 10 دن سے بیٹھ کے سکھوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان غلط کر رہے ہیں, یہ ہمیں دین سکھانے آیا ادھر. یار دیکھیں میری بات سنیں شاہد بھائی, جی ایک اپنے اندر نصیحت رکھیں کہ آپ تھوک کے مت چاٹا کریں. دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ سچی بات ہے, وہ غلط کہیں اس کو, منہ پہ کہیں, اور اس کو چاہے وہ گندے طریقے سے کہنی پڑے کہیں اس کو. 5:15 بجے اور 2 گھنٹے بعد کام پہ جانا ہے. یار جا کے سو نا, تو ایڈا مارو. افضل بھائی جو سوال چودھری صاحب نے بڑے بہت باریک سوال پوچھے ہیں, وہ تو دیکھیں نا, میری بات سنیں, وہ ہر طریقے سے گھما کے الٹا سیدھا لے جا رہا تھا, آپ اسے کیوں نہیں کہتے آپ خاندان بیٹی چود ہے؟ بالکل ہے, وہ بات سنے گا, دیکھیں وہ بیٹھ کے سنے گا تو آرام سے پھر اس کو بتا پائیں گے نا, اور ہم نے ثابت ہو گیا. یہی بات ہے, سچی بات اس کو لگی, وہ بھاگ گیا. ڈیفینیٹ صحیح بات ہے. نہیں وہ تھوڑا بھاگ رہا تھا بٹھا لیا, وہ تو جا رہا تھا, مجھے جلدی ہے. اچھا چلیں, جب وہ آئے گا نا تو اس سے پھر بات ہوگی. ابھی کہ میں آپ کو رزلٹ دے دوں یار, مجھے تو یہ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے. نہیں پہلا مرزائی ویکھیا جس نے کہا ہے جی کہ بالکل ندا نصر دا ریپ ہویا, نہیں تو سارے کہندے وہ پاگل ہے, یہ فیک ویڈیو ہے, فیک آڈیو ہے. یہ پہلا مرزائی ہے جس نے منیا ہے کہ بالکل ریپ ہویا ہے. میں مطلب یہ دلیری سی جو بھی ہے, چاہے وہ مرزائی سی. یار دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگ اتنے بغیرت ہیں, ان میں سے ایک آتا ہے, یہ اپنا چودھری صاحب بھی جانتے ہیں اور اپنا سید صاحب بھی جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی, اس کا نام ہے طاہر خان. طاہر خان کو ایک دفعہ ہم نے ان کی کتابوں سے اپنے حوالے سے نماز میں خشوع و خضوع کا پڑھنے کا بولا. اس حرامزادے نے پڑھا, ہم نے کہا کہ یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ تو بڑے فخر سے کہتا ہے جی ہم تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ تو ضیاء بھائی نے بولا کہ وہ مرے ہو کدھر پریکٹیکل تو نہیں کر دیتا انہوں کتیاں تھے. تو یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ انتہائی گھٹیا بغیرت قوم ہے, آپ کو اسی طریقے سے تو ڈیل کرنا ہوگا. آپ وہ پتہ چل گیا ہمیں شرافت سے ڈیل کریں, نہیں کر سکتے, بھول جائیں آپ. پتہ چل گیا ہمیں پچھلے 10 دن سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سکھوں کے ساتھ جا رہے ہیں. دیر یو گو, میں جانتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, میں نا آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں ایسے ہی پیٹرولنگ کر رہا تھا. مارخور وہ جو لائف تھی نا, وہ تو خالستان کے خلاف لگی ہوئی تھی. لیکن شاید بھائی یہ ہمارے علماء کو گالیاں دے رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے. اور ابھی میں نے ریکارڈنگ کی ہے کہ جو گل صاحب ہیں جی وہ واقعہ ہی انتشار پھیلانے میں سب سے اس کا جو ہے نا وہ پیک پہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. وہ اتنی بیٹھ کے ادھر گستاخیاں بھی کر رہے ہیں, اور واقعہ ہی ان کا وتیرہ یہ ہے کہ ہمیں گفٹنگ